नमस्कार 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 मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज यानी आरकेबी। मैं हूं इस वक्त एडवोकेट प्रदीप नामग्याल जी के साथ और प्रदीप जी और मैं दोनों हैं नेशन नाउ पर। नेशन नाउ हमेशा आपके साथ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। Pradeep ji, so I think there's a whole delegation at the moment surrounding Mr. Jharange Patil. Exactly, sir. And I hope he agrees. You know, it'll be a terrible tragedy if he actually, you know, if something were to happen to him. He's a very good man, very sincere man, and the way he's, you know, started his second fast. You got a couple of judges there. I could see Uday Samant there. I could see Bachchu Kadu there. I could see so many of the other ministers from Mr. Eknath Shinde's cabinet. And I hope that they arrive at something or the other. At least they are able to convince him that, hey, listen, we're trying our best here. What we can't do right now. क्योंकि पूरा मराठा आरक्षण कैसे देंगे मेरी समझ के बारे में, very frankly, they will not be able to give it right away. It's very difficult. I mean, the government's intention is clear. There was an all-party meeting, and all parties signed the resolution. Apart from Uddhav Thackeray, who's not invited. Yeah, Anil Parab was there, I think. There was Anil Parab was there. Yes. As a leader of the party, Uddhav Thackeray was not there, Sharad Pawar was there. But if all parties together have decided that we are going to be with the Marathas. In fact, Uddhav Thackeray ji in a press conference said that we want this problems to end and we are with the Maratha reservation. We want to go for it. In fact, he said 48 MPs should resign en masse, submit their resignation and tell the Prime Minister you need to do it. So the party stand also was clear. All party stand was clear. Now there is some formalities which all parties requested Jharange Patil that you withdraw your fast, your work is being done. It has been unanimously approved. All the parties said we need to have sympathetic view where Maratha reservations are concerned. So I don't think. I hope he agrees. Yes. And his initial stance that Kunbis at least start with issuing Kunbi certificates. That is being done. That is being done. So there is no reason for him to continue with the fast when now again he has extended. He says that I will fast till all the demands are met. Now that is stretching it a little bit more. If the government has got 2 steps forward, he needs to. Which is absolutely fine. But my point is, how are they going to convince the Supreme Court that the Marathas are socially backward? You know, economically backward is one thing, socially backward is another. How do you prove that you are socially backward? There are 96 groupings within the Marathas. How are you going to prove that? Because, you know, Kunbis is only one part of the entire Maratha universe. There are so many others. So, it's a very complicated issue. If you remember in 1952, Marathas were designated as a forward caste. The Mandal Commission designated the Marathas as a forward caste. Now they want to be, if they want to prove that they are backward, you'll have to prove you are socially backward, not just economically backward. Otherwise, the EWS reservation, which is already there, applies to you. Now, economically backward is different from socially backward. Now, I hope somebody somewhere knows that legal distinction and is able to argue in front of the Supreme Court, because the Supreme Court, after this 102nd Amendment of the Constitution, is bound by the law unless Mr. Modi changes the law in Parliament. And so if they do, Pradeep ji, you open up the floodgates. Here, there's again, now you see Ramdas Kadam and Narayan Rane said we will not take Kunbi certificates. Because we are not Kunbi. हम नहीं लेंगे. हम Shahi Maratha हैं, हम Kunbi नहीं हैं. No, but Shahu Maharaj, the descendant of the great Shahu Maharaj, he said, Chhatrapati Shahu Maharaj, he said Kunbis and Marathas are the same. Yes. 6 months they used to be till the field and 6 months. And 6 months was in warfare. Yes. 6 months in warfare, 6 months in the field. So they both are the same. They were Marathas, they were warriors as well as people who were farmers. Then Pradeep ji, what happens to the Dangars? What happens to the coolies? What happens to the Nais? Supriya Sule has talked about 4 things yesterday. Yes. Now Supriya Sule is very, very clever when she talks, and she is very, very particular about the choosiest words she uses. She talks about Marathas, she talks about Dangars, she talks about Lingayats, she talked about Muslim reservation. Yes. Now the first time somebody in Maharashtra has again taken up the Muslim reservation issue. Well, Muslims already have reservation. Anyway, under the Mandal Commission report, I mean, you already have, there are about 12 or 14 Pasmanda Muslim communities which are already under reservation. Her demand is the government is going back and promises yes. to all these 4 sections of the society.
Right, but we'll talk about that. I'm sure we'll have, when we have Mr. Ali Daruwal over here and when we have Mr. Suresh Chandra Rajhans and all the other political leaders, we're going to talk about that. At the moment with us, we have a genius. I mean, this man is amazing. This man, he's a treasure of Bollywood. So, not just the Bollywood, of the whole Indian cultural universe. This man is Sudesh Bhonsle. I don't even know how to describe him. Sudesh Bhonsle sahab, namaskar. Namaskar, sir. Good evening. Good evening, sir. How are you? We are meeting again, and I'm meeting you with a beard. Last time we met in Sahara on the RKB show, I was without a beard. Yeah, I know. I remember. Along with me, of course, is Pradeep ji. I'm trying to figure out, is this the same person I met? Same person. Same person. Same person. मैंने आवाज से पहचान लिया लेकिन. सर आप तो आवाज के बादशाह हैं. आप तो सर आवाज के जादूगर हैं, आवाज के बादशाह हैं. Thank you. और how do you remain the same? मतलब एक रिंकल तक नहीं क्या यार? कॉस्मेटिक सर्जरी करा के लाए हो, फेस लिफ्ट करा के लाए हो? Who is your cosmetic surgeon? वो लैब और सारी मशीनरी घर में बिठवाई है मैंने. अच्छा घर में बिठवाई. एक रिंकल भी आती तो मशीन घुमा लेता हूँ. हाय शाबाश. तो खुद ही डॉक्टर भी हो, खुद ही हर चीज. Brilliant. Absolutely. और इसमें मेरे पत्नी का बहुत हाथ है जी. वो मिठाई सामने आती, जैसे मेरे हाथ आगे बढ़ते हो कहते ये हाथ पीछे रखो ठाकुर. That was Sanjeev Kumar. Fantastic. Absolutely fantastic. You know what? How are you, sir? Absolutely fine. How are you, sir? Perfect. मतलब मैं बहुत सालों से मिस कर रहा था. मुझे अभी भी वो याद है इंटरव्यू जो आपके गोरेगांव मेरे घर से 2 मिनट पे स्टूडियो था आपका. जी था. एंड सो नाइस मीटिंग यू सर. So nice to meet you again. And Pradeep ji and I do this show every day. नमस्कार, आपको भी नमस्कार. So kind of you. बहुत ही सीरियस विषय पे आप लोग दोनों चर्चा कर रहे थे. भगवान करे सब अच्छा हो, जल्दी हो और हम लोग सब प्यार से रहें एक दूसरे के साथ मिलजुल के. जी दुरुस्त बात है. मतलब ये तो अब ये तो चलता रहेगा सर. दिस इज पॉलिटिक्स. चुनाव आने वाले हैं, ये तो होगा ही, मालूम है आपको. लेकिन सर ऐसा है, ये आप अकेले शख्स हैं, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग. करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग. अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो सुधार कर दें. सब लोग बच्चन साहब की कॉपी करते हैं, सब लोग जो है संजीव कुमार साहब की कॉपी करने की कोशिश करते हैं, अनिल कपूर साहब की कोशिश करते हैं. वो क्या है, अमजद खान, गब्बर सिंह, वो तो बच्चा करता है, कितने आदमी थे वगैरह वगैरह वगैरह. लेकिन आप अकेले हैं, अकेले, फ्रॉम व्हाटएवर आई नो, हु कैन एक्चुअली मिमिक विनोद खन्ना साहब. I don't know of anybody else who can do it. How do you do that? Vinod Khanna साहब is not, he does not have a distinctive mannerism. जैसे अमिताभ बच्चन साहब का एक मैनरिज्म है. You recognize his voice. उनकी आवाज़ जो है बिल्कुल ज़बरदस्त है. इसी तरह अमजद खान साहब की है. इसी तरह वो क्या, वो छकास वकास जो भी अनिल कपूर साहब करते हैं. लेकिन विनोद खन्ना, how do you do that यार? अभी how did you decide to do Vinod Khanna and how does it come out so perfectly? सर एक्चुअली मैं कहूँ, मुझे कुछ नहीं मालूम. वो अचानक ऊपर से एक सिग्नल आ जाता है और हाँ कुछ वॉइसेस मैंने, जैसे संजीव कुमार साहब को मैंने किसी टीवी अपना स्टेज पर, एक मिमिक्री आर्टिस्ट थे हमारे बहुत सीनियर कॉमेडियन जॉनी विस्की साहब. जॉनी विस्की बहुत पहले हाँ, ये बहुत साल पहले. तो उनको देखा था मैंने कि तबस्सुम जी उनका इंटरव्यू कर रही थी और तबस्सुम जी संजीव कुमार जी से पूछती है कि संजीव भाई आपने शादी क्यों नहीं की? तो कहते हैं तबस्सुम क्या तुम्हारी शादी हो चुकी है? तो वो कहते कि हाँ मेरी शादी तो हो चुकी है. तो मैं किससे शादी करूंगा? तो ये जब मैंने आवाज सुनी तो मैंने कहा अरे वाह, ये आवाज भी कोई नकल कर सकता है. और उस चक्कर में मैंने 10 दिन मेरा गला जो है बिगड़ गया था. मतलब वो अचानक फिर एक दिन आ गए. तो कुछ वॉइसेस मैंने मेहनत से मतलब आई और कुछ वॉइसेस ना, जैसे मुकद्दर का सिकंदर, गाड़ी में बम है सिकंदर, तो ये अचानक मैं बोल गया विनोद खन्ना जी का जी. तो जैसे बजा साहब आपने मुझे बुलाया, बहुत अच्छा लग रहा है. हाँ. तो ये कुछ आवाजें ऐसे. और साहब ये तो है हमने सुना है कि आपने एक बार अमिताभ बच्चन साहब की आवाज बना करके किसी को तंग भी किया था रात को फोन करके. इज दैट ट्रू? सर मैंने वो मैं नहीं था.
आप ही के स्टूडियो में, सहारा स्टूडियो में अमित जी को मेरी आवाज रिकॉर्ड करनी थी जी। और किसी ने बच्चन साहब से कहा कि वो जो स्टूडियो का टाइमिंग है, वो स्लॉट वो सपना मुखर्जी के ने बुक किया है। तो अगर अमित जी से कहा अगर आप उनको फोन करेंगे तो वो स्टूडियो आपको मिल जाएगा। तो उन्होंने कहा सपना जी मैं अमिताभ बच्चन। सुदेश मजाक मत करो। सपना जी मैं अमिताभ बच्चन। सुदेश मैं फोन काट दूंगी। सपना जी मैं अमिताभ बच्चन। सर सचमुच आप हैं? नहीं मैं सुदेश भोसले बोल रहा हूँ। ये रियल किस्सा हुआ था। उसी तरह मिठुन दा बहुत सोशल वर्क करते हैं, मिठुन चक्रवर्ती जी, बंगाल में बच्चों की स्कूल के लिए, गरीब बच्चों के लिए। तो उन्होंने एक बार मोहम्मद अजीज साहब को फोन किया और उनका फोन करना मतलब कैसे ना, जैसे रात को 2-2:30 के बाद। तो मुन्ना दा हमें मिठुन दा। सुदेश भाई क्यों मजाक कर रहे हो, नींद नहीं आ रही क्या? अरे क्या रहा सुदेश कर रहे तुम लोग, मैं मिठुन दा बोल रहा हूँ। तो उसने और कोइंसिडेंटली उन्होंने सेकंड फोन सपना जी को फोन किया। स्वप्ना हमें मिठुन दा। सुदेश टाइम तो देखो, ये वक्त है कोई फोन करने का? अरे क्या रहा तुम लोग सब सुदेश कर रहा है। तो ये वो तो मैं खुद नहीं करता, लेकिन हो जाता है। और अमित जी बोलते यार कमाल हो रहा है यार, गाने मैं गाता हूँ, लोग बोलते सुदेश भोसले ने गाया, सुदेश भोसले गाते तो बोलता अमिताभ बच्चन ने गाया, ये हो क्या रहा। तो होता है कभी कभी। और आपको एक मजेदार किस्सा बताता हूँ। ये कौन बनेगा करोड़पति जब पहला सीजन था 21 साल पहले जी, तो उन्होंने एक उनका जो ऑप्शन है फोन अ फ्रेंड, तो उन्होंने बंगाल में फोन किया। और बंगाल में ऊपर वाले की दुआ से बहुत मेरे चाहने वाले हैं। तो उन्होंने फोन किया, मैं बोल रहा हूँ अमिताभ बच्चन कौन बनेगा करोड़पति से और आपके मित्र यहाँ बैठे हैं, अगली आवाज होगी उनकी। तो सामने से आवाज आई, कहीं सुदेश भोसले ना था? बोले अरे नहीं मैं अमिताभ बच्चन। बोले नहीं उनका भी तो आवाज ऐसा ही है। बोले हे भगवान। तो अमित जी बोलते हे भगवान कैसे यकीन दिलाऊं आपको? नहीं अभी आपने भगवान का नाम लिया ना, फिर तो आप अमिताभ बच्चन है। कौन बनेगा करोड़पति से मैं बोल रहा हूँ सुदेश भोसले। तो ऐसे कभी कभी हो जाता है। फैंटास्टिक, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। सो व्हेन डिड यू स्टार्ट डूइंग मिस्टर बच्चन? बच्चन साहब की आवाज सबसे पहली बार आपने कब कॉपी करी और बच्चन साहब ने कब सुनी? जी मैं सबसे पहले बता दूं कि मैं एक पेंटर भी हूं। तो 74 से 82 तक मैं फिल्म पोस्टर्स पेंट किया करता था मेरे पिताजी के साथ। मेरे पिताजी एनआर भोसले वो बहुत बड़े चित्रकार थे। मुगले आजम, झनक झनक पायल बजे, दोस्ती, उस समय से जो हैंड पेंटेड ऑयल पेंट के जो होर्डिंग्स लगते थे वो बनाते थे। और 74 में मेरी पहली फिल्म थी प्रेम नगर। मुंबई के सारे बोर्ड्स होर्डिंग्स मेरे हाथ से। प्रेम नगर, अब वो राजेश खन्ना वाली, राजेश खन्ना है जी वो प्रेम नगर, जूली, स्वयंवर, यस जी। एंड 74 से 82 तक मैं सिर्फ पेंटिंग करता था। और मेरी माता जी सुमन भोसले, शी वॉज अ क्लासिकल सिंगर। मेरी नानी दुर्गाबाई शिरोडकर आगरा की, अहमद हुसैन खान साहब की शिष्या। तो वो 24 घंटे क्लासिकल म्यूजिक चलता था। लेकिन मैं थोड़ा अच्छा, हमारे घर में ना बॉलीवुड का म्यूजिक सुनना बैंड था। और क्योंकि हम लोग गोवा वाले हैं तो प्योर क्लासिकल, नाट्य संगीत, सुगम संगीत, इसके अलावा पिताजी बिल्कुल अलाउड नहीं था। और पिताजी जब बाहर चले जाते थे तो मैं अमीन सयानी, विविध भारती, ओ हसीनो तुमने सदियों आशिक को तड़पाया। और जैसे पिताजी आए मुंबई जो पिताजी आए और जैसे पिताजी बाहर गए, अजी ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा। तो ये माहौल था और ये मैं गाता था। फिर अचानक एक दिन अमित जी से बहुत पहले मैं सैगल साहब की आवाज अचानक गले से निकली, गमगीन मुस्तकिल कितना नाजुक है दिल ये न जाना, हाय ये जालिम जमाना। सुन मेरे बंधु रे, सुन मेरे मितवा, सुन मेरे साथी। तो ये मजाक में मैं करता था। और एक दिन
मुकद्दर का सिकंदर फिल्म मैंने देखी और दूसरे दिन स्कूल में था, 11th में था मैं, हायर सेकेंडरी में। किसी को देख के बोला, ए सोना चांद दरवाजा खोल दे। तो लड़की ने तो नहीं सुना, लेकिन मेरे दोस्त बोले, यार ये जो भैया अभी तूने किया वो बच्चन साहब की तरह था। और फिर हमने मजाक मजाक में रिकॉर्ड किया। और मेरा दोस्त एक टेप रिकॉर्डर लेके आया घर में, बोले कल जो तूने बोला अमित जी की तरह। मतलब मत छोड़ यार, कहाँ अमित जी कहाँ मैं। तो वो देव साहब का फैन था। मतलब टीचर उसको बोलती थी, मिलिंद स्टैंड अप, तो बोलते यस टीचर। और माँ बोलती थी कि मिलिंद कैसे कपड़े पहना है गंदे, कुछ ढंग के कपड़े पहनते। बोलते तन का चोला बदलने से मन का चोला नहीं बदलता माँ। तो उसने मुझे पूछा कि आजकल आपके बारे में बहुत कुछ सुना जा रहा है। अरे कुछ नहीं भैया, ये शूटिंग वूटिंग चल रही है, ये मीडिया वाले आपके बारे में बहुत कुछ लिख रहे हैं। अरे मीडिया वाले तो कुछ ना कुछ लिखते रहते हैं, आप अपना काम कीजिए। तो ये जब मैंने रिकॉर्डिंग इसकी सुनी तो मुझे भी लगा कि हाँ यार अमित जी जैसा। फिर मैंने उस वक्त उनके जो सुपर हिट मूवीज थी, उनके वीडियो कैसेट्स मिलते थे उस वक्त जी। तो उनको मैंने लाया, दीवार, जंजीर वगैरह। फिर मैं उनको लिखा, मैंने बाहर किया, फिर बाथरूम के कोने में जाके घंटों प्रैक्टिस करता था, और ताकि वो रिवर्ब इफेक्ट मिले। और जहाँ जहाँ मौका मिलता था मैं वो वॉइस करता था। और उस वक्त जितने मिमिक्री आर्टिस्ट थे, वो जैसे दादा मुनि, ओम प्रकाश जी, राजकुमार जी, इस दिलीप साहब, इनकी मिमिक्री करते थे। अमिताभ बच्चन लोगों ने पहली बार स्टेज पर सुना और कहते हैं ना, उनको यकीन नहीं, और फिर धीरे धीरे बात अमित जी तक पहुंच गई। So what is the first time when you met Mr. बच्चन और बच्चन साहब ने अपनी आवाज आपके मुंह से सुनी? जी, वो मैं क्या करता, 82 में मैंने मेलोडी मेकर्स एक ऑर्केस्ट्रा ज्वाइन किया। और उस वक्त मैंने 82 से 87 तक मैं किशोर दा के लगभग हर शो में उनका मैं एंकर हुआ करता था। मैं रफी साहब के गाने गाकर एक दो, फिर मैं किशोर दा को स्टेज पे बुलाता था और फिर घंटों उनको देखता विंग्स में बैठ के। और मैंने 80s में जीतू जी, श्रीदेवी जी, असरानी जी, शक्ति कपूर साहब, अमजद भाई, सबके साथ बहुत, मतलब 80s में साल में 4 टूर्स करते थे हम लोग, एक एक महीने के यूएसए। तो मैं अगर कभी जाता था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के पास, तो बोले हाँ उसको बुला बुला बोला, कल असरानी बहुत तारीफ कर रहे थे। या बप्पी दा के यहाँ गया तो बोले बुला उसको अंदर, वो कल शक्ति जी बहुत तारीफ करे। तो एक्चुअली जो कहते ना वॉचमैन भगा देता है, वो मेरे साथ हुआ नहीं। और लक्ष्मी जी ने मुझे सुना और सुदेश बोले एक काम करते हैं, एक गाना हमको करना लेकिन अमित जी की आवाज में, क्योंकि उनको पता था मैं अमित जी की नकल करता हूँ। और अमित जी के उस वक्त ना रंग बरसे और मेरे अंगने में वो बहुत हिट थे, और मुझे उनकी सिंगिंग वॉइस भी मालूम थी, और वो गाने में स्टेज पे गाया करता था। तो लक्ष्मी जी ने मुझे अचानक बुलाया और अजूबा फिल्म के लिए मुझे पहला गाना उन्होंने गवाया, या अली मेरा नाम है अली, रहता हूं मैं कहाँ मस्जिद वाली गली। तो शशि कपूर डायरेक्टर थे उस फिल्म के। तो लक्ष्मी जी ने शशि जी से कहा, ये जो लड़का है ये अमिताभ बच्चन की साउंड बहुत अच्छी बनाता है। तो शशि जी बोले सुनाइए। तो मैंने वही जो गाना है, वो जो मेरे पास लिखे हुए शब्द थे, वो मैंने कहा, या अली मेरा नाम है अली, रहता हूं मैं कहा मस्जिद वाली गली। तो शशि जी बोले परसों वाला गाना अमित जी से नहीं, इन्हीं से कराएंगे। और एक गाना मैंने गाया मोहम्मद अजीज साहब के साथ, अरे ताजुब है तूने प्यार नहीं किया, नहीं तूने दिल नहीं दिया, अरे नहीं दिया ना। तो ये गाना रिकॉर्ड हुआ, और जब बच्चन साहब ने ये गाना सुना तो बोले ये है कौन, मुझे इसको देखना है। तो शशि जी मुझे ले गए फिल्म सिटी, और मेरा हाथ पकड़ के अमित जी, साक्षात अमिताभ बच्चन साहब को मैं देख रहा था, सर हाथ पैर सब कुछ कांप रहा था मेरा। और मैं बोले सर, तो शशि जी बोले अमित जी सुदेश भोसले। तो मैं हाथ जोड़ रहा हूं उनको कि यकीन नहीं हो रहा था कि बच्चन साहब के सामने मैं खड़ा हूं। तो बोले सर नमस्ते। तो सामने से वो कहते हैं हाथ जोड़ के कि भैया हमारी आपकी आवाजें तो बहुत मिलती जुलती, मुझे तो पता ही नहीं चला गाना मैंने कब गाया। तो ये उनका पहला, मुझे मालूम नहीं पड़ा कि गाना मैंने कब कहा। हाँ, वाह। और उन्होंने फिर कहा कि देखो अब मैं गाऊंगा नहीं, अब जो भी है सुदेश गाएगा मेरे गाने। और उसके बाद उनके जो भी शोज होते थे मुझे बच्चन साहब ले जाने लगे। तो स्टेज पे पब्लिक के सामने वो गा रहे और विंग्स में से मैं उनकी आवाज में उनको लिपसिंग करता। और ये सुन के, ये देख के लक्ष्मी जी को ये आइडिया आया कि यार ऐसा कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं जो आज तक हुआ नहीं हिस्ट्री में,
कि कोई सिंगर उनके मैनरिज्म्स कॉपी किए हैं लेकिन वॉइस नहीं। और क्योंकि बच्चन साहब की सिंगिंग वॉइस भी लोगों को पता थी, तो लक्ष्मी जी ने एक्सपेरिमेंट किया, बोले स्टूडेंट मैंने कुछ लिखा है, अरे ओ जुम्मा, वो कैसे बोलेंगे, अरे ओ जुम्मा मेरी जाने मन, मेरी जाने मन। तो इस तरह ये गाना बना, खिचड़ी पकी। और बोले वो कैसे गाएंगे, जुम्मा जुम्मा दे दे, जुम्मा जुम्मा दे दे। और फिर अमित जी के सामने विदाउट माइक्रोफोन मुझे कहा सुरेश सुनाओ, और अमित जी से कहा कि देखिए हमने आपके लिए कुछ स्पेशल बना है। और जैसे अमित जी ने सुना बोले वेरी गुड, टेक करो। और सर आपको एक बात बता दूं, उसमें एक लाइन है, चुम्मा दे 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 चुम्मा दे 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 चुम्मा दे 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 चुम्मा दे। तो ये कंट्रीब्यूशन या ये जो भी है, ये अमित जी की आइडिया है। बोले सर मैं साउथ अफ्रीका में एक पब में बैठा था, रेगुलर कोई सिंगर गा रही थी, अचानक, और जो भी है जो लोग पी रहे थे, खा रहे थे, अचानक एक सिंगर ने आके जैसे ही ये लाइन आई, पूरी ऑडियंस फ्लोर पे आके डांस करने लगे। तो अचानक मेरे मुंह से निकला जुम्मा दे 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 चुम्मा दे दे दे, और वेरी गुड। और ये फिर गाने में बाद में एडिशन हुआ। फैंटास्टिक। और ये गाना जी जी बोलिए। ये गाना बच्चन साहब के सामने मैंने रिकॉर्ड किया रात के 2 बजे। और कहते ना, और इस रिकॉर्डिंग से पहले लक्ष्मीकांत जी प्यारेलाल जी ने मुझे कहा था कि सुदेश जिस दिन ये गाना आएगा देख तू कहां से कहां पहुंचेगा। बिफोर द रिकॉर्डिंग, 6 months बिफोर द रिकॉर्डिंग। What a monster hit! What a hit! So Yeah, he was the idol. Amitabh Bachchan is your idol for all time. Inspiration, idol, हर चीज अमिताभ बच्चन Yeah. है सुदेश का। You, I mean, any reason? I mean, बोलते हैं ना कुछ, they love dialogues भी। आप तो you are good in dialogues. People get inspired by some dialogues also, जैसे राजेश खन्ना जी के बाबू मचाए जिंदगी और मौत, ऐसे कोई dialogues है सर जो आप inspired थे? जी जी, मैं सर अमिताभ बच्चन साहब, विनोद खन्ना जी और काका से राजेश खन्ना जी से इंस्पायर्ड था। हालांकि मैंने फिल्में देखी नहीं, 24 घंटे पोस्टर्स पेंट कर रहा था, लेकिन कभी फिल्में ज्यादा देखी नहीं। लेकिन वो मैं स्टेज पे कहता हूँ, रो मत पुष्पा ये तो दुनिया की रीत है, और ये दुनिया वाले ना तो खुद चैन से जीते हैं, ना दूसरों को चैन से जीतने देते हैं। आई हेट यस पुष्पा, इन आंसू को पोंछ दो, ये बात की है। तो ये मैं करता था मजाक मजाक में। लेकिन बच्चन साहब ने बोला ना, पीटर तुम लोग मुझे ढूंढ रहे और मैं यहाँ तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, ये उनकी दीवार। और मैंने जुम्मा चुम्मा के बाद सर जैसे जैसे उनका चेहरा, उनका हुलिया और उनकी वॉइस भी चेंज हुई ना, तो जैसे मैंने कहा था जुम्मा चुम्मा दे दे, जुम्मा चुम्मा दे दे चुम्मा, उसके बाद मैंने जो शावा शावा गाया, वो अभी उनकी कौन बनेगा करोड़पति की जो लोगों को आवाज है ना, चलिए हम और आप खेलते हैं कौन बनेगा करोड़पति। तो मैंने एक पंजाब पर कुड़ी पटाखा दिल चुरा के लग गई, होय सोना सोना। तो मैंने भी उनके एज के साथ अपनी वॉइस को मैं बदलता गया। लेकिन हाँ, ही वॉज ऑलवेज एंड ऑलवेज बी माई इंस्पिरेशन, ऑलवेज। और कई लोगों को इंस्पायर किया उन्होंने। No, your voice is fantastic, Amitabh. Heavy voice. Amitabh Bachchan, जिस प्रकार से Amitabh Bachchan, fantastic, you know, and heavy voices. Even KL Cycle, हम लोग समझते हैं you can sing. But sir, Talat Mahmood, how can you know? आप जेल तलत महमूद से कैसे करते हो? I mean, I heard you also love to sing Talat Mahmood. That's, I mean, it's going from this extreme to this extreme. जी, before answering एक सैंपल देता हूँ। फिर वही शाम, Wow. वही हम, वही तन्हाई है, दिल को समझाने तेरी याद चली आई है, फिर वही शाम। क्या बात है? Oh man, this is something else. You have to compress yourself 100 times, I think. जो आवाज जो पहले उसको compress करके 100 times अंदर दबा के
फिर गाते जी जी It's a challenge. Singing at a totally different pitch. Wow. थैंक यू Wow, really wonderful. But I tell you what, सबसे बड़ी बात यह है प्रदीप जी that सुदेश साहब, ever since I've known him, जी ये he is not just a mimicry artist. सबसे बड़ी बात ये है, आप अपना भी कुछ डालते हैं किसी की आवाज में. मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ अमिताभ बच्चन साहब की आवाज, जैसे जुम्मा जुम्मा दे दे, ठीक है बच्चन साहब गा रहे हैं, हम पिक्चर है, लेकिन उस गाने में सुदेश भोंसले भी है, सीधी बात है. बिल्कुल है. हाँ, अगर आप ध्यान से सुने तो सुदेश भोंसले भी है, अकेले बच्चन साहब नहीं है. सो बिल्कुल बिल्कुल आपने पकड़ लिया मुझे. क्योंकि साहब मैंने देखा है, मतलब आप अपनी चीज भी डालते हैं हर चीज में, इवन इन मिमिक्री, इवन इन अदर थिंग, बिकॉज यू डोंट जस्ट कॉपी, you are a creative man, which is fantastic. So when did that start? क्योंकि क्या है, जब भी, because it's very easy कि मिमिक्री आर्टिस्ट बहुत होते हैं साहब, हर जगह पर, मतलब कोई ना कोई किसी की आवाज कॉपी कर लेता है, कुछ कर लेता है, लेकिन जहां तक आपका सवाल है, what sets you apart is जो आप अपना जो अंदर डालते हैं, उसकी वजह से I think you have lasted so long and you have done such wonderful things. So when did that start? उसके बारे में बताइए, क्योंकि पहले तो आप सिर्फ कॉपी करते होंगे, फिर अपना कुछ डालना आपने कब से शुरू किया, वो जरा बताइए. जी, वो एक्चुअली क्योंकि मिमिक्री करना, 2 लाइनें स्टेज पे बोलना, मतलब मच इजियर, लेकिन जैसे एक 10 मिनट का था ये जुम्मा चुम्मा हाई पिच सॉन्ग, उसको वॉइस को मेंटेन करना, प्लस जैसे मैंने कुछ साल बाद मुझे लगा यार मैं क्या कर रहा हूँ, अपनी आवाज है नहीं कोई, SD बर्मन, RD बर्मन ये कर रहा हूँ, फिर अजीज साहब कर रहा हूँ, असरानी, तो मेरे जो फैमिली या मेरे वेल विशर, सुदेश ये नकलची तू कब तक बने, अपनी आवाज. तो मैं थोड़ा सा डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन में चला गया. फिर मैं आनंद जी भाई के पास गया, कल्याण जी, आनंद जी भाई, मैं थोड़ा परेशान, क्या करूं मैं, मेरी आवाज कोई सुनना ही नहीं चाहता. जब बोलते लोग आज आपने संजीव कुमार ने किया तो क्या करूं, बोले आनंद जी भाई बोले सुदेश कुछ नहीं करना, तेरे जैसे कितने हैं इंडिया में, तू अकेला है, ऊपर वाला तेरी गाड़ी चला रहा है, अपने हाथों से इसको डिरेल मत कर, जो चल रहा है चुपचाप चल. तो उस दिन से मेरा माइंड क्लियर हो गया. और ये क्या हुआ कि पहले बेसिकली मैं बहुत सीरियस, बहुत शाय, बहुत शांत आदमी, मतलब मुझे भीड़ भड़क का, पार्टियां, शोर शराबा बिल्कुल पसंद नहीं. मैं वैसे कॉमेडियन बन गया, मैं खुद नहीं जानता. और ये कैसे हुआ, जैसे फॉर एग्जांपल मैं घर पे बैठ के टीवी में बच्चन साहब और अनुपम खेर साहब की मूवी देख रहा था. उसमें ये मुझे लग रहा है ऊपर वाला करा रहा है मुझसे, जबरदस्ती नहीं, मतलब उसकी इच्छा से हो रहे. तो बच्चन साहब अनुपम खेर जी को एक चांटा मारते, फिल्म का नाम याद, तो अनुपम खेर जी बोलते तू मेरा बेटा है बेटे, मिस्टर डेविड. तो विद इन सेकेंड्स मैंने वो डायलॉग बोल दिया, और मैंने कहा अरे अनुपम खेर साहब आ गए मुझे. और उसके बाद, हेलो जी बोलिए सर प्लीज. उसके बाद एक गाना आया था अपने गल्फ कंट्री का, कोई अरेबिक सॉन्ग, तो उसको मैंने 8 वर्षन गाए थे. और श्रीमान आशिक फिल्म आई थी जिसमें अनुपम खेर साहब की आवाज में मुझे म्यूजिक डायरेक्टर ने गवाया था, लड़कियों से ना मिलो तुम, लड़कियां तो है बलाए, सुबह शाम मत करो तुम, लड़की इनकी बेवफा अदाए. तो ऐसा मुझसे कराया गया. और जैसे एक फिल्म आई थी तिरंगा, नाना पाटेकर और राजकुमार जी, उसमें मोहम्मद अजीज साहब और मैं, पीले पीले उम्र राजा, पीले पीले उम्र जानी. उसमें सौदागर में दिलीप साहब और राजकुमार जी. फिर मुन्ना साहब और मैं, इमली का बूटा बेरी का पेड़, इमली खट्टी मीठे बेर, इस जंगल में हम 2 शेर, चल घर जल्दी हो गई देर. तो ये मुझसे करवाया गया सर. और मैं उसके बाद तेजाब में भी, मुझे पता नहीं था, अनिल कपूर जी बोले सुदेश मैं थोड़ा बाहर जा रहा हूँ, एक रील कर दे. तो एक रील मैंने मिस्टर इंडिया की थी. उसके बाद तेजाब के लिए, सेंसर के लिए एन चंद्रा साहब ने मुझसे वो फिल्म कराई. उससे पहले और उसके बाद मुझे अनिल कपूर की आवाज कभी नहीं आई, लेकिन
प्रीमियर भी मेरी आवाज में हुआ, और जब वो मिक्सिंग होने के बाद जब ये प्रिंट्स आई तो साउंड इंजीनियर कंफ्यूज हो गया कि सुदेश भोसले का ट्रैक कौन सा है और अनिल कपूर का ट्रैक कौन सा है। तो 25 प्रिंट्स मेरी आवाज में आज भी थिएटर में चलती जब भी। तो हैज मुझे पता नहीं कैसे होता है वो। माशाल्लाह, क्या बात है साहब। लेकिन क्या अनिल कपूर की आवाज बदली है? इतने सालों से आप उनको देख रहे हैं कि वैसी की वैसी? नहीं, ऑफ कोर्स वो एक एज के साथ थोड़े ग्रेन्स आते हैं, बेस बढ़ता है। तो वो अनिल कपूर साहब बोलते हैं कि वो अभी तक 25 साल के हैं। बोलने का अंदाज वही। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, मैंने देखा कि उन्होंने जो अपने आप को मेंटेन किया है मेरी तरह। सुदेश जी बहुत मेहनत करते हैं वो। लेकिन हाउ डज ही टॉक? एक अनिल कपूर का कुछ समथिंग ऑफ अनिल कपूर प्लीज। अरे नाइस यार, पता नहीं मुझे, मैं देखो इसमें अमर पालेकर आ गया थोड़ा सा। हाँ, आपका प्रोग्राम एकदम झकास, चलते रहो। हाँ for the youth, you're an inspiration. Yes. Sudesh ji Bhosle sahab, you're an inspiration. Now, as you said, आप painting करते थे बड़े चीज, and from painting you came straight to this. Now for the and now you're a success. Now you're a super success. The whole world sees you as a success. तो ये inspiration of change, ये motivate क्या होगा? नौजवान क्या समझे? कैसे वो inspire हो जाए? You are painting, from painting you have come here and now you're world renowned person. तो ये कैसे एक मोटिवेशन होगा यूथ के लिए? मैं सबसे पहले ये कहूंगा, इतने साल मैं ये कर रहा हूं, मेरी मजबूरी है या मुझे ऐसे ऐसे मौके आते हैं, ऐसी ऐसी सिचुएशंस आती हैं कि मुझे वो करना पड़ता है। लेकिन मैं सबसे कहूंगा, इवन मेरा बेटा बोलता है, पापा ही इज अ वेरी गुड कंपोजर एंड अ सिंगर, सिद्धांत भोसले, कि मैं आपकी तरह नहीं बनना चाहता हूँ, क्योंकि इसके अपने बोले ना, सिक्के के दो पहलू होते हैं। आज भी लाखों लोग मुझे मिलते हैं एयरपोर्ट पे, मतलब पूरे विश्व में, वो मुझे कहते हैं, यू डोंट साउंड लाइक अमिताभ बच्चन, यू हैव नॉट संग जुम्मा चुम्मा। तो मुझे हाथ पैर जोड़कर उनको बताना पड़ता है, इट्स मी। तो बोले जैसे वो, रूप तेरा सोना सोना, सोन तेरी पायल, छन छना छन ऐसे छन के दर्द सबको घायल, ए कह रहा आंखों का काजल, इश्क में जीना मरना, एवरीबॉडी शावा शावा, यू डोंट साउंड लाइक हिम, इट्स अमिताभ बच्चन। तो ये मैं नौजवानों को यही कहूंगा कि बच्चों, कभी नकल ना करना। बट आप तो सक्सेस हो, नकल करके सक्सेस हो आप नहीं, बिल्कुल जब लोग कहते ना कि वॉइस ऑफ अमिताभ बच्चन, तो बहुत अच्छा लगता है मुझे। बिल्कुल, यू आर नॉट द वॉइस ऑफ अमिताभ बच्चन। नो सर, आई डोंट एग्री, आई डू नॉट एग्री सुरेश भोसले साहब। You are the voice of Bollywood. I am sorry. Sir, you are the voice of Bollywood. You are everybody's voice. अगर किसी की आवाज चली जाती है, they know they have a bank, and that is सुरेश भोसले. And sir, बिल्कुल राइट। मुझे कई एक्टर्स ना फोन करते हैं कि सुदेश यार, 1 महीने के लिए हम लोग बाहर जा रहे हैं, एक रील बचे, प्लीज कर दो यार मेरे लिए। तो बड़ा अच्छा लगता है। या कोई, जैसे मैं, ऐसा कोई किस्सा बताइए ना सर। आपने पिक्चर डब करी हो किसी और की आवाज में, प्लीज। नहीं, मैं अभी अपार्ट फ्रॉम जो अनिल कपूर की आपने बात करी, उसके अलावा नहीं, मैंने संजीव कुमार साहब की 5 फिल्में डब की हैं आफ्टर ही पास्ड अवे। लव एंड गॉड, वक्त, कत्ल, ऊंच नीच बीच, प्रोफेसर की प्रोडक्शन, और अमित जी के कुछ, सब नहीं, कुछ एड फिल्म्स हिंदी में वो करते हैं, बाकी सारी इंडियन लैंग्वेजेस में मैं करता हूँ, असमीज, नेपाली, पंजाबी, गुजराती। क्या बात। तो हाँ सर, वो रिस्ट्रिक्शन की वजह से मैं वो प्रोडक्ट का नाम नहीं बता सकता। जी, समझ। और ना, लेकिन अमित जी भी, मतलब जब कोई एड फिल्म की शूट करते तो पूछते, हाँ सुदेश कर रहा है ना, बस। तो जैसे ऐसे मैंने सुना है, जब उन्होंने वो शायद पेटेंट बनाने का सोचा था, किसी एक मिमिक्री आर्टिस्ट ने, दिल्ली के किसी एक कलाकार ने कुछ गलत डबिंग की थी, शराब या टोबैको के, तो बहुत नाराज हो गए थे कि मैं अब किसी को अलाउ नहीं करूंगा। तो एक जर्नलिस्ट ने पूछा कि सुदेश भोसले का क्या? नहीं, उसकी बात अलग है। तो वो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। लेकिन यहाँ मैं एक चीज आपसे पूछना चाह रहा था सुदेश जी, आपसे एक चीज मैं पूछना चाह रहा था कि आज तक कभी ऐसी सिचुएशन हुई है स्टेज के ऊपर, जी, आपसे कुछ करने के लिए कहा हो और वो बहुत मुश्किल लगा हो,
आपको? कभी ऐसा हुआ है? सर, ऊपर वाला बहुत दयालु है। मेरा क्या होता है ना कि कई कलाकारों के साथ, आपके साथ भी होता होगा कि पता चला कि सुबह आप उठ नहीं पा रहे हो, जी। आपको बुखार है, जी। पूरी हड्डी पसली दर्द कर रही है, जी। बुखार है, सर्दी है, मतलब आपको लगता है कि आज मैं बैठ भी नहीं पाऊंगा। ऐसे कई बार सिचुएशंस आए, तो मैं शो से 1 घंटे पहले कैसे वैसे उठ के नहा धो के तैयार होके और मैं गाड़ी में भी बैठा हूं ऐसे, मतलब सर झुकाए, आंख नहीं खुल रही है, गला बैठा हुआ है, और स्टेज पे पैर रखते ही पता नहीं वो बीमारी, वो दर्द, वो खराश, वो सर्दी पता नहीं कहां से गायब हो जाती। जैसे ऑडियंस को देखता हूं ना, मेरे घर वाले पूछते ये कैसे हो गया, और ऑडियंस आके बोलती है सर आपको 30 साल पहले हमने देखा, उससे आप अच्छा कर गए आज। तो ये ऊपर वाले की कृपा के बगैर होता नहीं। I want to know for the youth, आपको देख के ऐसे लग रहा है कि लाइफ इज अ बेड ऑफ रोजेस, यानी आप जिधर टच किया इट्स अ मिडास टच, गोल्ड हो गए। कुछ आपके जिंदगी में परेशानी नहीं है, एवरीथिंग इज सो नेचुरल फॉर यू, अमिताभ बच्चन। बट एज यू बीच में आप कहा कि देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क, हार्ड वर्क इनटू इट। जैसे आपने कहा कि 10-10 घंटे 3-3 दिन में प्रयास किया, ये लोगों को मालूम नहीं। ये बोले कि भोसले साहब इतना इजीली नेचुरली सब करता है। So hardships, were they hardships or life has always been a good rosy bed for you all the time? And because ये इंस्पिरेशन के बारे में बोल रहा हूँ कि लोग मायूस ना हो, कभी उल्टा सुल्टा लाइफ में होए, ऐसे भोसले साहब इज नॉट बेड ऑफ, बोले रोड ऑफ रोजेस नहीं है, थोड़ा दिक्कतें भी होते हैं। बिल्कुल दिक्कतें होती, बहुत होती है, लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा, और मेरे पास आजकल व्हाट्सएप पे ना कई सिंगर्स जो मतलब मुंबई आ नहीं पा रहे हैं जी, तो वो अपने गाने भेजते हैं रिकॉर्डेड या कुछ लाइव शोज के। तो मैं उनको यही कहता हूं कि मुंबई आइए आप, लेकिन ये मत सोचिए कि मैं आते ही सुपरस्टार बनूंगा, मैं लता मंगेशकर बनूंगी, या मैं बच्चन साहब बनूंगा, या किशोर कुमार बनूंगा। यहाँ हम लोग ना वर्ल्ड में, जैसे ये कृपा है, हमारा जो प्रोफेशन इतना अच्छा है कि दूसरे के खर्चे से हम लोग फर्स्ट क्लास में ट्रैवल करते हैं, 5 स्टार होटल में रुकते हैं। और मैंने देखा है, हमने गांव-गांव में, मतलब गुजरात, महाराष्ट्र, इंडिया का एक गांव, एक गली नहीं छोड़ी हमने 45 ईयर में। तो मैं देखता हूं मेरे से 100 गुना ज्यादा टैलेंटेड लड़के, टैलेंट है हमारे इंडिया में, लेकिन नसीब मैं थोड़ा मानता हूं, क्योंकि उनके पास कलकत्ता से या यूपी से यहां आने के ट्रेन के पैसे नहीं उनके घर में। और मैं देखता हूं कि मैं कितना लकी हूं कि मेरी पैदाइश मुंबई में हुई, इसलिए मैं ये कर सका। और जो कहते हैं ना, हमने बहुत मेहनत की, हमने ये किया, हमको ये वो सब, मैं कहता हूं वो अगर आपने नहीं उसको फेस किया होगा ना, तो आपका सक्सेस नहीं है। सुदेश, यहाँ पर ये आपसे पूछना चाह रहे हैं, सुदेश जी आपसे ये पूछना चाह रहे हैं कि आप जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि बड़े अंदर से, भले आप ऊपर से दिखाएं या ना दिखाएं, अंदर से भगवान को आप बहुत मानते हैं, मुझको ऐसा लगता है। बहुत ज्यादा। और अभी ना आप दिन में या कभी, हो सकता है कि आप पूरी फॉर्मल पूजा ना करते हों, लेकिन भगवान को किस रूप में आप याद करते हैं हमेशा, वो जरा बताएं प्लीज। मैं सबसे पहले, कहते हैं ना, हम लोग अब का जनरेशन है ना, गूगल को अपना गुरु मानता है ना। तो हमारे आप भी ना अपने मम्मी पापा को अपना गुरु और अपना भगवान मानते हैं जी, मानते हैं, अभी भी मानते हैं, आज वो नहीं, लेकिन अभी भी। तो मेरी मम्मी हमेशा कहती थी, मैं गोवा से हूँ, शिरोडा से हूँ, और कामाक्षी देवी, जो कामाख्या देवी है गुवाहाटी की, हमारे शिरोडा गांव में, गोवा में कामाक्षी देवी, अगर कुछ भी अच्छा हुआ या बुरा हुआ, मम्मी ने एक ही सिखाया था, वो देख लेगी। तो मतलब नहीं समझता था, तो बोले फिक्र मत, वो देख लेगी। तो आज भी वो विश्वास है। आज भी कोई भी रिकॉर्डिंग शुरू करने से पहले अपनी मम्मी, पिताजी, नानी, फिर यहां से लेके लता जी, किशोर दा, रफी साहब, पंचम दा, सचिन दा, कल्याण जी भाई, लक्ष्मी जी, अनिल मोहिले, अरुण पौड़वाल, इन सबको मैं याद करता हूँ। फिर हमारे सारे देवी देवताओं को याद करके फिर मैं स्टेज पे कदम रखता हूँ या रिकॉर्डिंग शुरू करता हूँ। तो ये जो एक बिलीफ है, उससे मुझे कॉन्फिडेंस भी आता है। कुछ प्रेयर करते हैं आप अपने मन में या नहीं, मैं प्रेयर मतलब सुबह उठ के घर से बाहर जाने से पहले, सोने से पहले कामाक्षी देवी को सिर्फ हाथ जोड़ता हूँ, बस तू, तेरा आशीर्वाद रहे। पहले मैं मांगता था,
मुझे बंगला चाहिए, मुझे मर्सिडीज चाहिए। अब मैं बोलता हूं देवी धन्यवाद, मैं थैंक यू के अलावा और कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने देखा है सर कि मेरे से 100 नहीं 1000 गुना ज्यादा टैलेंटेड बच्चे हमारे देश में और बाहर हैं जिनको मौका नहीं मिला है। मुझे मौका दिया, बस दैट्स इट, और कुछ नहीं। और आज भी, और मैंने एक देखा कि 40 साल बाद, 45 साल बाद अब मुझे लोग ज्यादा प्यार करने लगे। एयरपोर्ट पे मैं देखता हूँ कि अरे ये मेरे साथ क्या हो रहा है, मतलब हाथ जोड़ के बोलते सर प्लीज एक फोटो। मतलब ये मैं हूँ कौन की, मतलब मैं मेरी एक स्टाइल है, मेरे पहले ही गाने में मैं क्राउड में घुस जाता हूँ कि 50,000 क्राउड हो या 1 लाख, बाउंसर्स परेशान हो जाते हैं तो वो हाथ लगा के ओ माय गॉड, मतलब मैं शाहरुख खान थोड़ी ना हूँ, ये तो ऐसा क्यों कर रहे। वैसे शाहरुख खान का बर्थडे आज, कुछ बोलना चाहेंगे आप शाहरुख खान साहब को? नहीं, आज मेरा बर्थडे है, आपने मुझे विश नहीं किया मेरे बंगले के बाहर, केक तो भेजिए। तो एनीवे सर बहुत बहुत अच्छा चल रहा है, और स्ट्रगल, मैं स्ट्रगल को स्ट्रगल नहीं कर रहा। आप रवि साहब से मिले, एक्चुअली रफी साहब के साथ आपकी मुलाकात हुई? मैं बदकिस्मती से देखो वापस बच गया। रफी साहब और मुकेश जी से नहीं मिला, मैंने लता जी के साथ काम किया, आशा जी के साथ 86 से अभी तक मैं कर रहा हूँ। अभी लास्ट में उनका 90th बर्थडे था दुबई में, उसमें मैं था। और सबसे बड़ी कॉम्प्लीमेंट कि मैं कुछ शोज में आशा जी के साथ नहीं था, तो आशा जी ने बोला सुदेश तू जब नहीं था ना, मैंने एक भी डुएट नहीं गाया, मैंने सिर्फ सोलो गाया। क्या बात, तो कितनी बड़ी बात है। बोले तेरे ऊपर बहुत भरोसा, बहुत कंफर्टेबल हूं मैं तेरे। फैंटास्टिक। तो ये बड़े लोग जो है ना, किशोर दा, लता जी, आशा जी, बच्चन साहब, उनका बहुत आशीर्वाद मिला है। और एक सबसे, जी बोलिए, प्लीज गो। ये सबसे बड़ी कॉम्प्लीमेंट मुझे जो मिली थी वो थी महमूद साहब से। मैंने एक स्टेज पे गाना गाया, सुन मेरे बंधु रे, सुन मेरे मुतवा, सुन मेरे चाची। तो महमूद साहब ऑडियंस में बैठे थे, और जैसे ही गाना खत्म हुआ पीछे आए बैक स्टेज, मेरे कंधे पे हाथ रखा और बोले बेटा जब तूने दादा का सुर लगाया, मैं तेरा चेहरा देख रहा था, तेरा ऊपर वाले के साथ कनेक्शन हो गया, मैं तुझसे जरूर गवाऊंगा। और उनकी आखिरी, उनका जो बेटा था दुश्मन दुनिया का फिल्म में, उन्होंने मुझसे गाना लिखवाया। तो ये काफी, मतलब ये जो सीनियर्स है ना, उन्होंने बहुत मुझे प्यार दिया, आशीर्वाद दिया। अब क्योंकि मैंने एक हमेशा चीज ध्यान में रखी, मिमिक्री करते हुए, कॉमेडी करते हुए, तालियां बटोरने के लिए मैंने कभी किसी का आज तक मजाक नहीं उड़ाया। तो हर कोई आर्टिस्ट, विनोद खन्ना साहब के सामने उनकी आवाज मैंने बनाई थी, बहुत खुश हो गए थे। तो ये मैंने संभाल के, जब वो एमपी थे या एमपी नहीं थे? एमपी नहीं थे वो, उससे पहले यूएसए टूर किया था उनके साथ। क्या बात है सर, वंडरफुल। चलते चलते किशोर दा के बारे में कुछ बताएं सर, किशोर दा के साथ आपकी रिलेशन कैसी रही? आज मैं सारे प्रोग्राम्स एक्टर करते थे, उनकी आवाज में आपने ना जाना कितने गाने गाए हैं। किशोर दा है जिनकी वजह से आज जो भी मैं करता हूँ। मैं सिंगर तो था, मिमिक्री आर्टिस्ट था, लेकिन एक एंटरटेनर, एक परफॉर्मर मैं किशोर दा की वजह से बना। क्योंकि गाने तो आप रेडियो पे, टीवी पे रोज देखते सुनते, लेकिन उसको ऑडियंस को कैसे ये कराना कि ये हमारे लिए गा रहा है। परफॉर्मर और एंटरटेनर क्या होता है, अगर मैं गाऊं जुम्मा चुम्मा दे दे, जुम्मा चुम्मा दे दे, जुम्मा, ये तो रोज सुनते हैं भाई, जुम्मा चुम्मा दे दे, ये करूं तो लोगों को लगता है यार मेरे लिए गा। अभी जैसे फॉर एग्जांपल, मेरे महबूब कयामत होगी, आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी। अब मैं बोलूंगा, अगर मिस्टर एक्स इन बॉम्बे का ये गाना मैं आपके सामने सुना रहा हूं, मेरे महबूब कयामत होगी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी की संगीत रचना, किशोर कुमार की आवाज, और मेरे तो पब्लिक मालूम है गाना। अब मैं क्या करता हूं, एक नाकाम टूटे हुए दिल के आशिक की, मतलब ये सदा है
नाकाम आशिक की टूटे हुए दिल की सदा है, आशिक कहता है या इलाही तेरे दरबार में फरियाद करते हैं, उन हसीनाओं को मत पैदा कर जो हमें बर्बाद करती है। पब्लिक वाह वाह वाह, मेरे महबूब, तालियां तालियां। तो ये एक स्टाइल रहती है प्रेजेंट करने का गाना। फैंटास्टिक। और किशोरदा हैं, इसलिए आज मैं हूं क्योंकि 5 साल उनको देखा सुना। एवरी संडे हम उनके बंगले पे रहते थे। मेरा काम कुछ नहीं होता था, मैं तो एंकर था, लेकिन सुबह 10 से लेकर रात के 8 9 10 बजे तक बस सिर्फ उनको देखता था। और वो जब स्टेज पे गाते थे, कुर्सी विंग्स में लगाकर, कहते ना सारी रिकॉर्डिंग यहाँ चलती रहती थी। क्या बात। और किशोरदा ने मुझे एक बार, तू बहुत अच्छा है रे, लेकिन एक काम करना, कभी सैगल साहब और संजीव कुमार का मजाक नहीं करना। मैं उनको बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, और कभी कभी मतलब सुदेश कुछ कर, मजर चाय पी के आता हूँ, तो वो जाते जाते किशोरदा के लिए मैं जो कहना, उनके शो में यूएसए में ये जो गाना है अमित कुमार जी ने गाया और कंचन जी, लैला ओ लैला लैला ऐसी तू लैला। तो ये गाना मैंने कहा, अगर आजकल के बच्चे फिल्मी ट्यून्स में ज्यादा रुचि लेते हैं, तो अगर लैला को अमित कुमार की जगह सैगल साहब बुलाते तो कैसे बुलाते, और गाने का लैला पे क्या असर होता। लैला हो लैला, अरे हाँ ऐसी तो लैला, हर कोई चाहे तुझसे, अरे हाँ ये नया कहना। उसके बाद हेमंत कुमार गाते, लैला हो लैला ऐसी तो लैला, हर कोई चाहे मिलना अकेला रे। फिर जाते हम लोग पंचम दा के लिए, लैला हो लैला ऐसी तो लैला, हर कोई चाहे तुझसे, चाहे तुझसे मिलना अकेला। ऐसे मत गाइए, लैला नहीं आ जाएंगी, ये आ जाएंगे, इसलिए मैं आपके पिताजी के पास जाते। तो लैला हो लैला रे तू लैला, अरे कोई चाहे तुझसे मिलना अकेला। तो लोगों ने यूएसए में इतनी तालियां बजाई, एकदम वंस मोर। तो मैं खुश हो गया कि किशोर कुमार के शो में सुदेश भोसले को वंस मोर। जब तालियां रुकी नहीं मेरे गाना खत्म होने के बाद भी, जब लोग हंसना बंद नहीं कर रहे थे, मतलब यार ये ऐसे कैसे इतनी तालियां मुझे। तो बाद में पता चला कि जब मैंने लैला लैला शुरू किया, तो किशोरदा मेरे पीछे खड़े होके शॉल लहरा के मेरी लैला पे डांस कर रहे थे, लोग उनके लिए तालियां बजा रहे। Fantastic. Anyway, Sudesh ji, it's been a great pleasure thank talking to you. Thank you for calling me, sir. Thank you. Sir, it's a real pleasure. You must come to our studio. कभी अगर आप BKC की तरफ अगर आप आएं तो जरूर स्टूडियो में आइए, हमारे साथ चाय और कॉफी पीजिए. It'll be an honor to welcome you. Thank you, sir. और चलते चलते अपने दर्शकों को और सुदेश भोसले साहब को भी बता दें, इंडिया और श्रीलंका का मैच चल रहा है अभी वानखेड़े में जी. इंडिया ने तो बहुत जबरदस्त स्कोर बनाया है, 357 का स्कोर बनाया. श्रीलंका एट द मोमेंट, आई एम ग्लैड टू इन्फॉर्म यू, इज 22 for 7. 22 रन पे 7 विकेटें डाउन है श्रीलंका की. सर वंडरफुल, थैंक यू सो मच सुदेश भोसले साहब. थैंक यू. ग्रेट प्लेजर टॉकिंग टू यू. थैंक यू सर. थैंक यू. Wonderful. Oh God, that could have gone on forever. I mean, you know, that it's amazing. always, you know, you could go 24/7. That's right. You could hear him because he's can got hear so him. much of material to tell. Yes. So Brilliant. much. Absolutely And brilliant. every moment was informative, entertaining, and of substance. Fantastic. And he hasn't changed a bit. He hasn't changed one bit. And the other man, by the way, who looks absolutely dapper and very sure of himself and ready to roll. I don't know whether he's ready to rock and roll or not. It's our old friend, Mr. Ali Daruwala from the BJP. Ali Daruwala sahab, good evening. Mr. Daruwala, good evening, sir. Good evening. Good evening. Am I audible, sir? Absolutely audible. Thank you very much, sir. Namaskar. Vande Mataram, sir. Vande Mataram. Sorry to keep you waiting, but Mr. Sudesh Bhosle was so entertaining, so entertaining. He you know, it was very difficult to let him go. But
Voice is not clear, sir. Hello. Can you hear me now, sir? Now. And I can't hear you. You can hear me, but I can't hear you. Would you say something? Would you say hello or something like that? Hello. Yes, absolutely fine. We can hear you. We can hear you, sir. Yeah. Tell me, sir. So, Ali Darwala Sahab, Mr. Modi has launched one more campaign, this time against corruption of every sort. He says this is the second revolution of India. No black money will be tolerated. No black transactions will be tolerated. And as far as India is concerned, if India is to grow, and by the way, he's absolutely right, if India is to grow as a world power, you cannot have a parallel economy that the state knows nothing about. Darwala Sahab, do you think Mr. Modi will succeed? 110%, sir. When the note bandi had happened, I know his speech. He had said, give me 50 days. Give me 50 days and I will wash the system out. And it was that time, it was very, very painstaking. There were lots of rumors flowing. There were allegations made. And we saw at the end of the day how black money was phased out. About the parallel market, it is so shameful to say, yes, there was a parallel market. There was 100% parallel market. If there was 1 rupee in the check amount, there was 1 rupee in the cash amount, which was going on in the shopkeepers, wherever. They used to like blatantly and shamelessly ask you when you went to a shop. I remember very clearly, said, what do you like to buy it, in bill or in without bill? It was so blatant and so open. With the introduction of GST, with demonetization, I can tell you now, the same shopkeepers say, sir, we do not have an option. It is GST paid. You will have to take a bill. Parallel market has been washed out, crushed and thrashed. This is what happened with the note bandi, with demonetization. And now I can assure you, Sanjeev sir and Pradeep sir, when the Prime Minister says it will not be tolerated, means people should do take it seriously. He said, jitne log lana pade main launga, and ye corruption or ye whatever this, this what is happening, this parallel thing, he is going to squash it out, and when he says it, we mean it. BJP बगैर कोई धारा विचारधारा के बात नहीं करता है सर. Fantastic. Pradeep ji. No, this Rahul Gandhi, Priyanka Gandhi, again they are continuously over the entire thing. बोले कि हमारे mobile phone ले लो, Apple phone आप ले लो. You can you don't have to snoop it through somebody else because they say they have got no Apple notification which says device compromised by state-sponsored attackers. Now, I think the government doesn't do so. Now it's state-sponsored attackers. So how do you see this? They say Pegasus से शुरू हो गया. अब शुरू करते करते आप हमारे फोन में और तरीके से घुस रहे. What is there? I mean, what is there to snoop on opposition leaders? That's what the India Alliance accuses you. Now, the list is big. Raghav Chadda from the Aam Aadmi Party. You got Owaisi himself complaining. You got Rahul Gandhi complaining. You got Shashi Tharoor, Akhilesh Yadav. Darwala Sahab, does the BJP requires all the government requires to snoop on these people, opposition leaders? Sir, Pradeep sir, Bajaj sir, I'd like to make one thing very clear. As you say, when the rule is passed, it is not passed only for the opposition. Likewise, if a phone is going to be snooped, or is going to be trapped, or whatever is going to happen, let me tell you, even I am a BJP spokesperson. There are people who are working on both sides. It can happen to both sides. And if some material is found, I've been talking to several officers. If a trail is found, you are in for big traps, sir. You are in for big trouble. But if there is nothing, you need not be scared, sir. You need not be worried. If you are not doing anything and you have not indulged yourself in any nonsense, I am telling you there's nothing to worry. And if you cannot prove, sir, it is 1 + 1 is 2 and not 3 over here, sir. If trails are not found, you need not worry. The courts are open and nobody can be nailed for not doing anything wrong. If there is something, the people who are coming out and who are complaining, they need to worry. And if it is found, mind you, they will be in Tihar jail, sir. When my Prime Minister was grilled, he asked the officer, sir, that time who was in power, you know. They were, as a Chief Minister, he was called to grill. So that time we did not complain. We did not say that forces have been used against us. We went over there. We
answered. And while going, he said, if you need me to come back, tell me. If you need to continue, I am energetic, you can continue asking me. Sir, we walked out scot-free. We did not have andolan and we did not have agitation and streets burning down. So why is this scare? Why is this fear factor, sir? Because you have done something, that's why you are scared. अगर कोई छुपाने की गरज नहीं है, तो आप घबराते क्यों हो? Sir, but as far as money trail is concerned, the court itself had mentioned, the Supreme Court, that there is no money trail leading to Mr. Manish Sisodia. They said personally he's got nothing, and yet he has been denied bail. So, irrespective of whether you have done something or not, Correct. it's a bit of a misnomer as to what's really going on. I Correct, hope correct. the I would review love to answer petition that. that they have filed, I hope that gives specific reasons as to why bail has been denied. Ji, Darwala sir. I would love to answer that. Please, As go you ahead, said, as you said, sir, that no money trail has been found, nothing has been established in his personal domain. I agree with you, sir. Yes. No problem. But the exchequer loss that the state suffered of 3,500 crores for a wrong policy, the state exchequer has suffered a loss. So you mean to say I have not taken? So what? Getting the state in a loss? No, it's not done, sir. You are equally responsible for what you have done. So in effect what you're really saying is, suppose the state adopts a policy, and by the way that is true also for Mr. Modi's policies, where the state has suffered a loss which it would not have suffered if the policy had not changed, then no policy change should take place. Mr. On what Darwala? account, sir? On what account? So if there is something and Like for example, I'll tell you, for example, earlier we used to have at least 12 to 14 players in the market who were allowed to import coal. Today, the only player who is allowed to import coal is Mr. Adani, nobody else. Isn't that creation of a monopoly leading to destruction of competition of everybody else? Mr. Darwala? Sir, it is open tendering, and if But the country only one person is given the license to import coal in India. Nobody else has that license. Only Mr. Adani Sir, has. Sir, if that's the allegation, sir, if that is It's the not an allegation, it's the truth. Sir, it is government policy. Nobody else has the right to import coal in India anymore except the Adani group, sir. Mr. Sir, Darwala. sir, it is in the public domain. You can go and surf it, sir. The requirements, the parameters that were required was fulfilled by this company. Others were, 90% of them were not even existing companies that wanted to bid for this, sir. And the foreign policies, the foreign offshore and the ports that they have to bring in the coal, the infra, everything is in order. And at that point in time, we needed the coal overnight because there was no electricity. The country would have been in darkness. It was this company who invested from its coffers and got the coal and did not mind that when is my payment going to come from the government and all that. It was the Adani who came forward and saved us from darkness, sir. That is far as my information is concerned. But if you are saying, I would definitely go back, get the subject study, and I would like to keep this for another debate. As to, I am not aware as to this is going to be the point of discussion today. But governments are made for making policy. My point is, sometimes a policy works, sometimes it doesn't. For instance, when we gained independence, India was not manufacturing even a pin. We were not manufacturing anything at all. Yes. Which is why Pandit Nehru had to adopt a policy where the state got involved through public sector units in various areas of the economy. Now, very unfortunately, that continued till 1991. Does that mean Mrs. Indira Gandhi, Mr. VP Singh, prior to that Mr. Rajiv Gandhi and everybody else should be held to be criminally liable for causing such a loss to the exchequer merely because they did not open up the economy earlier? Mr. Darwala? It's a philosophical question. No, it is a philosophical question. I would say yes, when we started from zero, when we started from scratch, we were not well versed. The East India Company left us with nothing. We had to form, the government had to do the funding. We did not have the big businessmen except for a few houses like the Tatas and the Bajaj and few big houses. And Birlas and the Dalmias. Yes. Correct. There were few houses you can count on your 5 fingers. They were the investors. Yeah, less than 5 fingers. The government yes. got in. Yes. Yeah, there were less than 5 people.
They came forward. It was like philanthropy rather than that business what these people did. I can vouch for it. Later the government did it. Now we are efficient enough. We have become competent in Amrit Kal. In 75 years we have emerged. We need to change with time, sir. And I'm telling you again and again, when we keep attacking Adani, sir, it is not Adani. It is those million and million of investors. I'm not attacking Adani. You I've got and nothing me. against Mr. Adani. Let's be very clear. I think Mr. Adani is doing a wonderful job. Let's be very clear. That's been my view 100%. right That's from what day I'm one. saying. It's a shareholder. It is the shareholder. It is his money. We have to be very careful when we So talk. it's absolutely, We cannot attack any office with 4 people. That Hindenburg company that Hindenburg. attacked the Hindenburg, sir. And There were George 4 Soros. people which had no credibility, sir. What happened? The market crashed. Billions and millions of rupees were wiped out. So you cannot be so carefree, careless when you go on a national platform like So it that. happens. Mrs. Indira Yeah. Gandhi was attacked for her closeness first to Mr. Dhirubhai Ambani. Then later on, Mr. Swaraj Powell was seen as being very close to R.K. Dhawan. He was brought in over there. And then Mr. Rajiv Gandhi saved his friends. If you remember, Mr. H.P. Nanda and Mr. Bhartiya, they were saved by him. Otherwise, he would have taken over their companies and so on. So it happens. I don't. Let me tell you very frankly. I've been a journalist now for years and years and years. I've seen this happen. I've seen this play out again and again. Whosoever is in power is always sought to be linked to somebody or the other by the opposition. No, So I don't buy this. this Adani thing holds no water. Let me tell you very frankly. Well, all I'm saying is, at the end of the day, today we are the 5th largest economy. By the end of next year or the beginning of 2025, we will be the 4th largest economy. We would have overtaken Germany. That's what's going to happen. Now, which is fine as far as the GDP is concerned. Mr. Darwala, my concern is, what about the per capita income? When is that going to go up? Darwala sir. Bajaj sir, you are saying that from the 5th largest economy we may jump to 4. But We will, not we may, we will. Even if the growth rate is the same as it is today, we will. Yes, I will be taking you for surprise. If we reach the spot number 3, it will not be surprising because the alarm. So, Bajaj sir, I'd like to tell you one thing very clearly. The way the economy is boosting, the money that is coming, there is big money to be made for clean players. The industry is doing so well, exceptionally well. The road industry, the defense industry, the manufacturing industry, the mobile industry, the construction industry, the real estate is booming, sir. There is big money that everybody is making. There is a very positive sentiment amongst people. Sir, it's not even 1 year complete. We are limping back. As you're talking about per capita income, I would like to make myself very clear. So we are limping back. Others have not even been able to recover. Well, my take is not if others have not recovered, so I have recovered, so I'm better off than others. No, I've got nothing to do with it. We are Modi at the helm of affairs. We are going to do much better than other countries, and we are aiming at 2047 to be amongst the top 3 producers, top 3 stakeholders in the world, sir. World, not India. There was back in Maharashtra, Supriya Sule was very. Supriya Sule said that Devendra Fadnavis ji should resign. Now that was a very strong statement from Supriya Sule. Supriya Sule says that he has betrayed the aspirations of not only the Marathas, but he has the Dhangars, the Lingayats and the Muslim reservation. Now Muslim reservation is something when Supriya Sule raised, was she appealing to some size of the population? Was she trying to provoke more action? But the worst thing saying that Devendra Fadnavis is responsible and he should resign. He couldn't control the law and order situation in so many districts. In fact, Beed was on fire, many other districts was on fire. Nothing. So how do you see this kind of a reaction from Supriya Sule, who said Devendra Fadnavis, the Home Minister, should resign? Darwala sir. Okay, responding back to what Supriya Sule said, she is attacking Devendra Fadnavis. Why is she not attacking her brother who is in the same cabinet? I did not hear. What is this, like stupidity? It was Devendra Fadnavis who presented, under whose leadership we could retain in the court. The presentation given by her government could not even sustain
It was thrown out of the High Court on the Maratha reservation issue, sir. Out of the Supreme It Court, was- sir, not the High Court. High Court we had already Correct. won. No, during later we had Mr. won Fadnavis's when time. yeah, it was thrown out. But Yes. when we prepared it and when we sent it back to the courts again, it has withhold the test of the scrutiny, and we are moving ahead. It is the court which is going to give the judgment. They should have little patience, but this little dirty politics that they do, that this one should resign and that one should resign. So Marathas are not fool. This issue is not come up yesterday, is not raked up. Day before yesterday, very cleverly, we all know who has raked it up, who's got it back in the platform, what is happening. But as Devendra Fadnavis, Eknath Shinde, Ajit Pawar ji has appealed to the people to keep calm, not to take law and order in their hand. It is very beautifully maintained by our Deputy CM, Devendra Fadnavis ji. It is his smartness and it is his vision that this issue will also be But sir, taken indeed, they care burned of. so many houses. They burned the houses of MLAs. They destroyed all the cars. Correct. A curfew had to Correct. be imposed. Definitely, this is not done. The Maratha community has been at the helm of affairs. They had 12 chief ministers in 13. last 50 years. 13 chief ministers. What happened? See, this is the problem. The expectation from BJP is very high. What has not happened in last 60 years, they wanted to happen in last 5 years. Yes, we will live up to the expectation. We will give justice. As far as this reservation is a very, very complex issue. It cannot be discussed just by fasting. It cannot be resolved. You have to give the government a time, and yes, you will see the result in this government, sir. Apart from this particular incident where Supriya Sule asked for his resignation, she went on to say that Adit Pawar thi, मैं तुम्हारा सांगतो, we ate from the same थाली में हम लोग खाए हैं, you come back. Well, like this BJP will destroy you. They destroyed Uddhav Sena, they destroyed Sharad Pawar sahab. Now they took Eknath Shinde ji along with him, and now they're going to destroy Eknath Shinde ji. That is what Supriya Sule says. BJP is going to destroy Eknath Shinde ji. You see the silence that is coming. Devendra Fadnavis ji himself is saying, "Me Puna in." So it's better you come back and let us all work together. They are going to ditch Eknath Shinde ji. Before that, you please jump ships and come to us. Now, how do you see this Supriya Sule? Is it threatening? Is it a lure? Or what does she mean by that? That the BJP is going to backstab Eknath Shinde? Sir, Eknath Shinde ji is doing an exceptionally good job. We are proud and we are happy that Eknath Shinde ji had the presence of mind to join the government and do better for the community, for Thana, for the rest of Maharashtra. Likewise, Ajit Pawar ji also woke up from his slumber, from his sleep. He said being in the government, he can do much better than sitting in the opposition. Though we did not need the number, we did take him with the government because it is the injustice that would have happened to the people, the constituency where this 40 MLAs come from. Jointly putting all this number together, sir, welfare, a good job is being done in Maharashtra. Supriya Sule cannot digest the fact she is good at what she is doing and she is doing what a woman should do normally, and she is misguiding her own brother, not even realizing that the loss of crores and crores of people will suffer if the ruling party does, from whatever constituency, is not represented when they are in the government, sir. Supriya has said what she had to say. Ajit Dada is very, very senior. He is really very seasoned in politics. He's made the right choice. He's made the right decision. On the same platform and in the same breath, I would request... Darwala sahab, Ji, sir. there is speculation to the effect, and that too coming from BJP sources and BJP leaders. There have been BJP spokespersons right here on this show. इस शो के दौरान भारतीय जनता पार्टी के बहुत प्रवक्ताओं ने, बहुत नेताओं ने भी ये कहा है, फर्स्ट I'll say this in Hindi, then I'll say it again in English, कि जब भी शरद पवार जी विपक्ष में होते हैं तो ऐसी एजिटेशन शुरू हो जाती है महाराष्ट्र में, हर जगह पे किसी ना किसी चीज को लेकर के एजिटेशन शुरू हो जाती है. So what do you have to say about that? Is that true? Whenever Mr. Pawar is in the opposition, Maharashtra, there are protests all over the place. Sir, I would like to recommend one thing over here. Like, you know, I am very particular when it is Honorable Sharad Pawar sir, Honorable Uddhav Thackeray sir. They are the mass leader. I have got immense respect for them. This may be the sentiment of the particular pravakta or the spokesperson who said. I say this subject has always been there.
you just go into the depth. The subject has always been there. It is only the timing when it has been raked up. So it happened that if Sharad Pawar ji or certain people are in opposition, this has been raked up. But now I will tell you, forget the timing, forget what Devendra Fadnavis sir, Narendra Modi ji and Amit Shah sir will once and for all. I am grateful if this thing has come up, it has raked up, and maybe before election, I am grateful it has come up. Now we will come with a logical solution to this, and this will be streamed out and it will be rolled out is there a once and battle? forever. Is there an internal battle going on right now? Because Ajit Dada Pawar is completely silent on this. Is there an internal battle going on, which is not in the public domain obviously, between Mr. Eknath Shinde and Mr. Devendra Fadnavis? Is there a tussle going on, sir? No, sir. Last week, if you will be, if you are aware, it was Honorable Chief Minister, sir, and Honorable Deputy CM, sir. They both went to Delhi together, and they got the Kunbi reservation, sir. To set the record right, it was these two people who stayed in Delhi, who were campaigning for last 2 days, and they got justice for the Kunbi and that 11,500 certificates that were issued, the authenticity and all that. They are seriously and with sachi imandari, they are working, and they honestly want to get a solution to this Maratha reservation fiasco that is going on in Maharashtra. Rajiv sir, Pradeep sir, we are a committed government, and we do not believe in this dirty politics, a short-time solution to any problem. I agree. So, As I Pradeep ji, told what you- happened to Mr. Jarangi Patil? Has he called off his fast? Is he still on fast? What's going on? Because I could see a lot of judges, I could see Mr. Uday Samant, I could see Mr. Bachchu Kadu, I could see a lot of other ministers surrounding him right now. Will somebody tell me please if Mr. Jarangi Patil is called off his fast? I'm not so sure. Darwala sir. No, sir. I know that today it was decided in the all-party meeting that a high-power committee will go to Mr. Jarangi Patil and say this issue is not as simple as he feels. But I can assure you, my Shishtamandal, the high-power committee, He's ended his must fast? have. Yes. Oh, that's congratulations. Mr. Jarangi Yeah, Patil has congratulations. broken his fast. Isn't that lovely? Fantastic. Wow, that is Congratulations. great. That is really great. I mean, because this was becoming terrible. I mean, if something had happened to him, Yeah. you know, it would have been. Yeah. Jarangi Patil, I have immense respect for him. He's definitely not there. He's not a puppet to be played by anybody's hand. He is honestly working for the community. He's given a new deadline, And though. his integrity, I respect his integrity, sir. He's This given a man new is deadline. not He's given a penetrable. deadline now till January the 2nd. Very good, sir. I really am grateful to him, sir. Yes. No, it's we'll go back to the center. Rahul Gandhi's campaign is, I am not Prime Minister Narendra Modi, and I keep my promises. I keep my promises. That's what he says. मैं नरेंद्र मोदी नहीं हूं और मैं अपने वादा निभाता हूं और मैंने जो 5 राज्यों में वचन दिया है, 5 वचन, 6 वचन, 11 वचन, 7 वचन, in all the 5 states, that will be fulfilled. And that's the slogan, I am not Narendra Modi. Now, how do you see that, Daruwala Sahab? Now, Narendra Modi doesn't keep his promises, that's what he's telling the people. Sir, that is very good that Rahul Gandhi sir says this, because as I told you, he is the best campaigner for BJP, better than anyone, all of us put together. He has been campaigning for BJP, to be very honest. Whatever promises he's given, I hope he keeps it, because whatever promises BJP and Congress and AAP has given has taken the state into darkness, into backwardness and into doldrums. The Banana Republic representatives are Rahul Gandhi and Arvind Kejriwal ji. I hope they give promises and they prove in this time, in 1 year, 2 years time. I am giving my party, Narendra Modi ji's vision, Amit Shah ji's vision, the Vichardhara that we have, I give 15 years. We are going to take this country to another level, another height of prosperity. And I'm giving this party, we are not there in the south, I agree, language is a barrier. And what Rahul ji is saying, what they have done in Karnataka, in New Delhi, and Punjab is a total fiasco. And you are going to see, I'm telling you, people are not fools. You and me, Pradeep sir, we the educated people cannot be fooled by this stupid wade that this party is making, sir. But Darwala Sahab, they are giving vachans everywhere. 7 vachan, 11 vachan, 9 vachan. In all the 5 states, they are up with.
and they, pot shots at BJP saying तेलंगाना में बीजेपी 2% है, कैसे सरकार बनाएंगे, ये तो खाब देख रहे हैं, और आगे जाके then always including मित्रकाल, oh राहुल गांधी will bring मित्रकाल से आजादी, बेरोजगारी से आजादी, जुमले से आजादी, they go on reminding people, बोले कि 2 करोड़ जो एम्प्लॉयमेंट देने वाले थे हर साल, अभी 50,000 के एम्प्लॉयमेंट लेटर्स सबको बांट रहे हैं. Now this kind of, there is something that you need to also will have to tell the people about employment, berojgari, commitments toward the people. How do you see that? The 5 states elections. Sir, as I told in our 5 state elections about the South, I give ourselves, my party, 15 years from now, that you will see the saffron in the south of India. Language was the barrier, but in MP and in Rajasthan, we are giving a tooth and fight battle to them, sir. We may be having a back foot, but not a complete back foot. It's a 50-50 ratio. We are working hard. At the end of the day, it is the people's mandate. Pradeep sir, Rajiv sir, I do not speak, I refrain from talking nonsense. I'd like to speak the truth. Yes, it is a 50-50 mandate. There are exit polls that are showing, and we are not very forceful, but we are working towards it. It is this man's hard work which we will take it to the people, and finally it is the button, it is the Janta Janardan ka Janadesh which will prove, and we are trying our level best to at least come back in 2 states with majority, sir. I hope that happens, because at the moment it looks difficult. At the moment the Congress seems to be ahead. I didn't say, sir. I said it's 50-50, yeah, not 49-51. Yes, but if you had a good leadership in the states, it would have been much better. In Rajasthan, for example, in Rajasthan, for example, Vasundhara ji is nowhere to be seen. In Madhya Pradesh, your star campaigners don't even mention Mr. Shivraj Singh Chauhan, and in Chhattisgarh, Dr. Raman Singh seems to have disappeared. So the local leadership is kind of not there as far as the BJP is concerned. I agree, Rajiv sir. Pradeep sir, see, it is a new party. It is a party. We had 10% old people. We have got 90% of influx who have joined. But this 90%, Rajiv sir, Pradeep sir, I will not mince my words. Yes, that is the fact. We do not have local representation. Local politics is a different issue. These people have been hanging around there for last 40, 50, 60 years. They are refusing to go. We have young blood who are joining the party. We have people from all strata, all political parties who have joined. Yes, I agree that we have a new party with 70, 80, 90% of influx, with 10% taking the torchbearer ahead. Yes, it will change, and it is set to change. It is too much of burden on one man's shoulder. It is a double-engine Sarkar in Delhi where Amit Shah ji and Narendra Modi ji are the torchbearers. They are taking it, but the decision making and the trickling down will show in the results. We are being very optimistic. We should not. I think you do very well in the Lok Sabha. On that there is no doubt. I mean, no doubt. I said about local politics. As far as the state is concerned, let's see how it goes. But in any event, one very good news that Mr. Jharange Patil has broken his fast. He has also appealed to everybody to stop all agitations. He has said. He has also said that the chain fasts will continue, where people will sit for say 4 hours or 6 hours, or those will continue till January the 2nd. I hope by then some solution would have been found. 100%. At least a legal so this will be streamlined. We will not leave anything unturned. So this party will not leave anything unturned, and we will come with the mandate. And what you say, this has been the creator of, this is a brainchild of this one and that one. Let it be anybody's brainchild, sir. I take it optimistically. We will streamline all the issues. It is the people's demand. At the end of the day, we work for the people and not for any 2, 3. Yeah, but the only thing is we must have a separate discussion on reservations, whether or not the reservation law itself needs to be changed. Not with me, sir. Yeah, I have a different school of thoughts. I hope you are able to present that difference. That would be nice, because I don't even know whether we need reservations. But right, Mr. Darwala, thank you very much. I think we've just lost him. Thank you so much, sir. All the very best to you. Always a pleasure talking to you. Thank you so much. राइट सो प्रदीप जी, जरंगे पाटिल साहब ने अपना फास्ट तोड़ दिया और ये कहा है जो चेन फास्ट चल रहे हैं वो अभी तक चलेंगे और 2 जनवरी तक जो है वो 2 months time.
2 months. 2 months time. Ji. That is what Charanga Party has given. And at the moment with us from the Congress. Right, Darwala Sahab, thank you very much. We just wanted to thank you. Darwala Sahab, thank you very much. Vande Mataram, sir. Vande Mataram. Thank you. And at the moment with us from the Congress Party, we have Mr. Suresh Chandra Rajan. Suresh Chandra Rajan ji, namaskar. नमस्कार सर, नमस्कार. Vande Mataram. वंदे मातरम. जय जय महाराष्ट्र सर. जय महाराष्ट्र, जय भवानी. सुरेश चंद्र राजन साहब, ये बताएं, मनोज झरंगे पाटिल साहब ने अपनी आमरण अनशन आज खत्म कर दिया. सरकारी डेलीगेशन उनको मिलने गया, 1-2 जज भी थे उसमें, उदय सामंत साहब भी थे, दिख रहे थे, अपने क्या नाम है, बच्चू खड़ू साहब भी थे शायद. Yes, वो भी थे, 1-2 और लोग भी थे. Yes. लेकिन उन्होंने कहा कि भाई 2 जनवरी तक की डेडलाइन है आपके पास, अगर आप तब तक कुछ नहीं करते तो फिर कुछ और होगा. लेकिन ये तो सिर्फ मराठा आरक्षण को लेकर के है, और बाकी सब लोग जो सड़क पे हैं उनका क्या होगा? वो तो चल रहा है. जो धांगड़ एजिटेशन है वो भी चल रही है, माली एजिटेशन है वो भी चल रही है, मराठा कोली एजिटेशन है वो भी चल रही है. सुरेश चंद्र राजन साहब बताएं. जी बोलिए सर. सर, जरंगे पाटिल ने जो आज उनका जो ये आमरण उपोषण चल रहा था, उस उपोषण को खत्म किया, ये हम सबके लिए एक शुभ संकेत है सर जी. क्योंकि जिस तरह से मराठा रिजर्वेशन के मुद्दे को लेकर ये आंदोलन चल रहा था, और पिछले 8 दिन के अंदर महाराष्ट्र का जो कायदा और सुव्यवस्था पूरा के उसकी धिंडोरिया बच गई थी. वहाँ पे लोग डर रहे थे, लोक प्रतिनिधि घर के बाहर नहीं निकाल रहे थे, और कई जगहों पे इन लोक प्रतिनिधियों के घर जलाए गए, उनकी गाड़ियां तोड़ी गई, लोगों के ऊपर हमले किए गए. ये राज्य सरकार का फेल्यूर है सर. और आपको मालूम होगा, पिछले कई दिनों से कांग्रेस पार्टी की भूमिका थी. कांग्रेस के हमारे जो महाराष्ट्र के प्रेसिडेंट नाना पटोले हो, हमारे अपोजिशन लीडर विजय वडेट्टीवार जी हो, ये बार बार कहते थे कि आप सभी पार्टियों का एक कॉमन मीटिंग ले लो, उसमें सबकी राय ले लो, सबके साथ एक मिनिमम एक कॉमन प्रोग्राम बनाओ, और उस आधार के ऊपर आप ये मराठा रिजर्वेशन जितना जल्द से जल्द दे सकते हैं उसके ऊपर सोल्यूशन निकालो. लेकिन देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे जी, ये भाजपा की सरकार का जो अहंकार था, वो उनका जो अहंकार था, पिछले 40 दिनों से उनको सभी दलों को साथ में लेके मीटिंग करने के लिए अलाउ नहीं करता था. लेकिन जब परिस्थिति हाथ से निकल गई, महाराष्ट्र के लोग रास्ते पे उतर गए, मराठा समाज के जो आंदोलन कर रही है वो रास्ते पे उतर गए, और जब हिंसा भड़की तो उनको मजबूरन सभी पार्टियों का मीटिंग लेना पड़ा. और हम तो शुरू से मराठा आरक्षण के मुद्दों को लेकर सरकार को समर्थन के लिए, सहकार्य करने के लिए तैयार थे. और जब कल सभी पार्टियों ने एक रिजोल्यूशन पास किया, और वो रिजोल्यूशन आज जरंगे पाटिल साहब को सरकार के शिष्टमंडल ने दिया, उसके बाद जरंगे पाटिल की ये मानसिकता उनकी समझ में आ गया कि सरकार और महाराष्ट्र के सभी पार्टियां मराठा आरक्षण को लेकर गंभीर है, और वो उसके ऊपर सोल्यूशन निकालना चाहते हैं. और इसीलिए जरंगे पाटिल साहब ने ये मराठा आरक्षण की लड़ाई सर बंद नहीं हुई है, खत्म नहीं की है. उन्होंने राज्य सरकार को 2 जनवरी तक का टाइम दिया है. Yes. और इन 2 महीने के अंदर में इस सरकार को मराठा आरक्षण के लिए ठोस कदम उठाने हैं और मराठा समाज को आरक्षण देना है. 2 तारीख के बाद ये सारा मराठा आंदोलनकारी समाज जो है, ये सारा मुंबई के नाकों नाकों पे आपको दिखाई देगा. सुरेश चंद्र जी, राजन साहब, सुप्रिया सुले जी ने कल कहा कि देवेंद्र फडणवीस जी को इस्तीफा देना चाहिए. देवेंद्र फडणवीस ने बेवफाई की है, नॉट ओनली मराठा समाज से, उन्होंने कहा उन्होंने डांगर समाज, लिंगायत समाज और मुस्लिम आरक्षण में भी ठीक तरह से कुछ किया नहीं है. तो क्या देवेंद्र फडणवीस जी को आप लोग विलन बना रहे हो उस पूरे चीज का, कि देवेंद्र फडणवीस जी ने लॉ एंड ऑर्डर फेलर भी देवेंद्र फडणवीस, ये 4 जो आरक्षण के लिए डिमांड था 4 लोगों का, अभी मुस्लिम आरक्षण के बारे में सुप्रिया सुले जी बोल रही है, बोले कि फडणवीस जी ने धोखा दिया. तो कैसे तो एक ही टारगेट है ऑपोजिशन का, वो है देवेंद्र फडणवीस जी. कैसे देखते हो सुरेश चंद्र राजन साहब आप? सर, देवेंद्र फडणवीस, देखो, भारतीय जनता पार्टी आरक्षण के खिलाफ शुरू से है, लेकिन
भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र में और देश में इतने सारे कद्दावर नेता हैं, लेकिन टारगेट पे देवेंद्र फडणवीस क्यों है? इसका कारण यह है कि देवेंद्र फडणवीस का पिछले कुछ सालों में मराठा रिजर्वेशन हो, धनगर रिजर्वेशन हो, दलित रिजर्वेशन हो, मातंग समाज का रिजर्वेशन हो, इन सारे रिजर्वेशन को लेकर, मुस्लिम समाज का रिजर्वेशन हो, इन सारे रिजर्वेशन को लेकर जब वो विरोधी पार्टी में रहते हैं, अपोजिशन में रहते हैं, तो उनकी एक अलग भूमिका होती है। लेकिन जब सरकार में आती है, उसके उलट विरोध में वो भूमिका लेते हैं। और यही है कारण है कि आज देवेंद्र फडणवीस सभी समाज के टारगेट पे है। और जरांगे पाटिल ने जो कल देखा, जरांगे पाटिल ने क्या कहा कि आज हमारे राज्य के मुख्यमंत्री और अजित पवार जो है ये मराठा समाज को आरक्षण देने के लिए सकारात्मक है, चर्चा करना चाहते हैं, सोल्यूशन निकालना चाहते हैं। लेकिन देवेंद्र फडणवीस जिस तरह की भूमिका लेते हैं, या देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में काम करने वाले, ये राणे फैमिली हो, सदावर्ते हो, प्रसाद लाड हो, चित्रा वाघ हो, प्रवीण दरेकर हो, ये सारे लोग जो है ये आंदोलन को बदनाम करने के लिए, आंदोलन में और कैसे प्रॉब्लम आ सकते हैं इसको लेकर स्टेटमेंट करते हैं, जिसके कारण ये परिस्थिति निर्माण होती है सर। तो मुझे ऐसे लगता है कि देवेंद्र फडणवीस खुद इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। उनको कोई विलन नहीं बनाना चाहता है और कोई उनको विलन नहीं बना रहे हैं, लेकिन देवेंद्र फडणवीस खुद इन लोगों के माध्यम से अलग अलग बयान करके अपने आप को विलन बनाने का काम कर रहे हैं सर। जस्ट अ स्मॉल ब्रेकिंग न्यूज फॉर आवर ऑल आवर व्यूअर्स। प्रदीप जी, श्रीलंका ऑल आउट फॉर 55। इंडिया हैज वन द मैच एट द वानखेड़े स्टेडियम मुंबई के 302 रन से। मुबारक हो सबको सर, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। सुरेश चंद्र और सर, जिस मोहम्मद शमी को एक बेहतरीन गेंदबाज है, जिनको हम लोगों ने शुरुआती कुछ मैचों में रेस्ट दिया, जान के रेस्ट दिया ताकि अच्छी तरह बॉल कर सके बाद में। 6 विकेट लिए सर। राजन सिंह को कुछ और पूछना है। मैं समझ गया सर वो क्या बोल रहे हैं, किस तरह इशारा कर रहे हैं दिख रहा है। नहीं सर, देखो टैलेंट है लेकिन मौका नहीं मिलता है जी। 6 मोहम्मद शामी ने 6 विकेट लिए हैं। मोहम्मद सिराज में सर, मोहम्मद सिराज ने 3 में 17 विकेट लिए सर। मोहम्मद सिराज ने 3 विकेट लिए हैं और जी सर, और हमारे जसप्रीत बुमराह साहब ने 1 विकेट लिए है। बट दिस इज द बिगेस्ट विक्ट्री इंडिया हैज एवर हैड बाय 302 रन्स। 302 रन से क्या बात, ग्रेट अचीवमेंट एंड बिग कांग्रेचुलेशन टू ऑल इंडियंस सर। फैंटास्टिक, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। बट माय ओनली होप इज दिस इज द काइंड ऑफ फॉर्म वी वांट टू सी इन द फाइनल। ऐसा ना हो कि तब तक थक जाएं, इतना अच्छा पहले खेल के, मतलब वो न्यूजीलैंड वाला हाल नहीं होना चाहिए। 1992 में जो न्यूजीलैंड का हाल हुआ था, सारे मैच जीत गए और सेमीफाइनल हार गए, वो नहीं होना चाहिए भाई। मतलब जी सर नाउ ऑफ कोर्स इंडिया इज इन सेमीफाइनल। लेकिन चलिए, ये तो खैर क्रिकेट की बात रही। अब क्या है कि धर्म से भी बढ़कर है, क्रिकेट तो धर्म है, हिंदुस्तान में रिलीजन है, तो इसलिए जरूरी होता है लोगों को बताना भाई क्या हो रहा है वगैरह वगैरह। लेकिन सुरेश चंद्र राजन जी, जो आपने बात कही अभी अभी देवेंद्र फडणवीस जी के बारे में, उस विषय के बारे में मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आपको क्या खबर है? क्योंकि बीजेपी के सूत्रों से भी और एकनाथ शिंदे सेना के भी सूत्रों से 2 चीजें सामने आ रही है। नंबर 1, अजित दादा पवार ने अपने आप को थोड़ा विड्रॉ कर लिया है, वो जरा पीछे हो गए हैं बैकग्राउंड में, वो आगे नहीं आ रहे हैं, स्पेशली ये मराठा आरक्षण को लेकर या बाकी सब चीज़ों को लेकर के। क्या एकनाथ शिंदे जी और देवेंद्र फडणवीस जी के बीच में कोई तनावपूर्ण स्थिति चल रही है अभी? ऐसा कोई खबर आ रही है आप सुरेश चंद्र राजन जी? सर देखो, ये तीनों, अजित पवार हो, एकनाथ शिंदे हो या देवेंद्र फडणवीस, ये तालमेल वाली सरकार नहीं है सर। ये एक दूसरे की जरूरत के लिए वो सत्ता में आए हैं। और मराठा आरक्षण के मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी मराठा आरक्षण को लेकर सकारात्मक काम नहीं किया है सर। और आपको मालूम होगा, इससे पहले आज जरांगे पाटिल ने उनका जो उपोषण है वो छोड़ने का काम किया, लेकिन इससे पहले भी उन्होंने सरकार को 40 दिन का टाइम दिया था जी। 40 दिन में एकनाथ शिंदे जी, देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार के नेतृत्व वाली इस राज्य की सरकार ने 40 दिन में क्या काम किया, ये महाराष्ट्र की जनता को बताना चाहिए सर। अगर उनको ये बैकवर्ड कमीशन के माध्यम से स्टडी करना था तो 40 दिन के अंदर ये कभी भी इस तरह के इस आयोग के माध्यम से ये स्टडी करने का काम कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया है। और जब 40वां दिन था, उनको अभी लगा कि ये ज्यादा हो गया, ये सिचुएशन हद से निकल रही थी, उस वक्त एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस दिल्ली का दौरा करते हैं
वहां पे वरिष्ठ नेताओं के साथ चर्चा करते हैं और फिर यहाँ पे आते हैं। लेकिन सर आपको एक बात बताता हूं, मराठा आरक्षण का मुद्दा हो या किसी भी समाज को अगर अलग से रिजर्वेशन देना है तो जब तक केंद्र सरकार ये 50% रिजर्वेशन का कैप निकालती नहीं है, उसकी जो मर्यादा है उसको खत्म करके उसको बढ़ाती नहीं है, तब तक आप टिकने वाला किसी भी समाज को एडिशनल आरक्षण नहीं दे सकते सर। और हमारा मानना है कि देवेंद्र फडणवीस या भारतीय जनता पार्टी को, केंद्र में उनकी सरकार है, मोदी जी अगर चाहते हैं तो मराठा समाज के लिए आरक्षण देने का प्रावधान कर सकते हैं। एक विशेष सत्र का वहां पे आयोजन कर वहां पे कानून को अमेंड करके उस तरह का निर्णय ले सकते हैं। कर सकते थे ना, अभी स्पेशल सेशन तो बुलाया था, उसमें ला सकते थे, एक रेजोल्यूशन ला सकते थे। इच्छा शक्ति नहीं है। आपको मालूम होगा सुधीर मुनगंटीवार उनके मंत्री है, बड़े नेता है, उनको जब पूछा गया कि देश के प्रधानमंत्री महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण के मुद्दे को लेकर इतना वातावरण बिगड़ा हुआ है, कायदा और सुव्यवस्था का प्रश्न निर्माण हुआ है, आंदोलन इतना भयानक हो चुका है, उसके ऊपर महाराष्ट्र में आके नरेंद्र मोदी जी एक शब्द भी नहीं बात करते हैं। तो उसके ऊपर वो प्रतिक्रिया देते समय मुनगंटीवार साहब कहते हैं कि नरेंद्र मोदी ये राष्ट्रीय नेता है, इनके इतने छोटी सी बात के ऊपर उनको व्यक्त होना जरूरी नहीं समझता। इससे मराठा आरक्षण के मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व क्या सोच रखता है ये स्पष्ट होता है सर। राजन साहब, मोदी जी का कहना है, देखो आज का सोशल मीडिया में मोदी जी का सौगंध मुझे इस मिट्टी की हम भारत भव्य बनाएंगे, मोदी साहब का कहना है। आगे जाके कहना कि हमने कोरोना सक्सेस, कोरोना काल में पूरे देश में एक सक्सेस है हमारे जो काम किया कोरोना काल में, मोदी जी का कहना। विकसित भारत रोड मैप मोदी जी ने बनाया। आज जो हमने सिल्क रूट को रीओपन करने वाली बात है वो मोदी साहब का सपना है और वो हासिल करके रहेंगे। इंडिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप और आगे जाके ये पूरे सिल्क रूट जो एस्टेब्लिश करेगा मोदी साहब करेंगे। 5th बिगेस्ट इकोनॉमी मोदी साहब कर रहे हैं। चंद्रयान पे पहुंचे, चंद्रयान 3 और L1, तो वो गिना रहे कि हमने क्या किया। आप सिर्फ सोचते रहे, मोदी साहब करते रहे। मतलब कांग्रेस 60 साल सिर्फ सोचते रहे। हमने वुमेन एम्पावरमेंट, नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2 दिन में कर दिया। अलग अलग चीज हमने इतने, आप सोचते रहे, हम करते रहे। तो राजन साहब, ये कैसे होगा कि कांग्रेस पे लोग विश्वास करें? प्रियंका गांधी है, राहुल गांधी जी है, जबरदस्त कैंपेन तो चल रहा है 5 राज्यों में, पर क्या हासिल होगा? मोदी जी के जो रिकॉर्ड रिपोर्ट कार्ड लेके जो घूम रहे हैं मोदी साहब। राजन जी, प्रदीप जी, जब मोदी जी देश की जनता को नए नए सपने दिखाते हैं, वो सपने सुनने के लिए देश की जनता को बहुत अच्छा लगता है। आज नरेंद्र मोदी जी जो योजना का पारा गिनते हैं, उनका लोगों के साथ कोई संबंध नहीं है सर। और वो ऐसे जुमले दिखाते हैं, आज उसकी घोषणा करेंगे लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन अगले 10 साल तक नहीं हो सकता है। लोगों को एक नया भारत निर्माण करने की बात करेंगे लेकिन उसके ऊपर कुछ काम नहीं करेंगे। लोगों को रोजगार देने की बात करेंगे, लेकिन आपने देखा होगा कि आज के जो सर्वे रिपोर्ट है बेरोजगारी का, पिछले 2 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी का परसेंटेज बढ़ा है। इसके ऊपर नरेंद्र मोदी जी को देश की जनता सवाल पूछ रही है। और ये सारे अभी इन 5 राज्यों में जहां जहां इलेक्शन का कैंपेनिंग हो रहा है, सब जगह पे नरेंद्र मोदी जी वहां जाते हैं, अपनी इस योजना का पाड़ा गिनाने का काम करते हैं, लेकिन लोग उनके लिए उन्होंने इस राज्य में क्या काम किया, इस अलग अलग जिला में क्या काम किया, तालुका में काम क्या किया, गांव में क्या काम किया, इसके बारे में सवाल पूछ रहे हैं सर। आपको एक उदाहरण देता हूं सर। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी का एक प्रोग्राम चल रहा है। वहां पे उनके स्टेट के जो प्रेसिडेंट है चंद्रशेखर बावनकुळे लोगों के बीच में जाते हैं और उनको पूछते हैं कि भाई आपको अगला प्रधानमंत्री को, हम इस देश का प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। तो बीजेपी सभा में हो रहा है। हाँ, बीजेपी के सारे सभा में होता है और उन सभा में बीजेपी के, और सबसे आश्चर्य की बात क्या है प्रदीप जी, उसमें क्या होता है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रचार सभा में और अलग अलग सभाओं में, प्रोग्राम में उनके जो लोग होते हैं, उनके जो सपोर्टर होते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी का दुपट्टा पहन के बैठते हैं, उनको पूछते हैं और उनको ऐसा लगता है कि ये हमारे लोग हैं,
कि ये मोदी का ही नाम लेंगे, लेकिन वहां पे सब उल्टा हो रहा है सर। जैसे गड़बड़ हो पहले रही राहुल है। गांधी के साथ होता था, जैसे हाँ, 2013 तो- 2014 में राहुल गांधी के साथ होता था, अब नरेंद्र मोदी जी के साथ हो रहा है। ये चौंकाने वाली बात है। और इससे ना सर, ये लोगों का जो सुर है ना, वो बदल की तरफ चल रहा है। बदलाव ये की ऐसा तरफ चल बदलाव रहा है। कैसे आ गया? आपका विश्लेषण क्या है? आपने चलिए इंसिडेंट तो बताया, एक मिनट, आपने बात तो बताई, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? सर पिछले 9 साल में जिस उम्मीद के साथ इस देश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को सत्ता में लाया था जी, लोगों को इन्होंने बड़े बड़े सपने दिखाए थे जी, लोग काफी उम्मीद के साथ मोदी जी की ओर देख रहे थे। लेकिन आपने पिछले 9 साल में अगर मोदी सरकार का कार्यकाल देखा होगा तो उसमें कई सारी, जो पब्लिक सेक्टर हो, प्राइवेट सेक्टर हो, ये छोटे छोटे व्यापारी हो, युवा हो, महिला हो, इन सबको डिस्ट्रॉय करने का काम मोदी जी ने किया है। और छोटे छोटे व्यापारी, कोरोना काल में आपने देखा होगा, छोटे छोटे व्यापारी पूरी तरह से टूट गए। उन व्यापारियों को जो सबसे बड़ा रोजगार निर्मित करने का काम करता है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हो, ये इंडस्ट्री को उनको रिहाब करने के लिए या उनको सपोर्ट करने के लिए कोई योजना नहीं थी उनकी सर। वो बिल्कुल उसी तरह से वो सारे सेक्टर में मोदी जी फेल हो गए थे। और उसका जो फेल्यूर है, मोदी सरकार की जो नाकामी है, उस नाकामी को लेकर हमारे नेता राहुल गांधी जी हो या कांग्रेस पार्टी का जो वरिष्ठ नेतृत्व प्रियंका गांधी हो, मल्लिकार्जुन खड़गे जी हो, सोनिया गांधी हो, या स्टेट की जो हमारी हाईएस्ट लीडरशिप होती है, उन्होंने उसके ऊपर प्रहार करने का काम किया। लोगों के बीच में गए, बार बार उनके ऊपर हमला करते गए और लोगों को इन सारी विफलताओं के बारे में अवगत किया। तभी जाके लोगों को रियलाइज हुआ कि सचमुच मोदी जी ने हमें बड़े बड़े सपने दिखाए थे, लेकिन उसके ऊपर मोदी सरकार खरी नहीं उतरी है। लेकिन अभी भी तेलंगाना से फुटेज आई है साहब, प्रियंका गांधी जी की मीटिंग की, बड़ी जबरदस्त फुटेज, बहुत जबरदस्त, अमेजिंग, क्या इम्पैक्ट है साहब, मजा आ गया। सर तेलंगाना हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, यहाँ पे सर ना प्रियंका गांधी जी हो, राहुल गांधी जी हो या खड़गे साहब के जितने भी प्रचार सभा हो रहे हैं ना, आप देखोगे तो ना मतलब हैरान हो रहे हैं लोग कि इतना बड़ा जन सैलाब वहां पे आता है और कांग्रेस को सपोर्ट करता है। और यही कारण है कि वो लोग डर रहे हैं। और आपने सर और एक मार्क किया होगा, इन 5 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की स्टेट की जो लीडरशिप है ना सर, वो कहीं दिखाई नहीं दे रही है और नहीं दिखा रही है। और क्योंकि लोग उन लीडरशिप को ठुकरा गए हैं सर, लोगों ने उन लीडरशिप को लेकर ना ठुकरा दिया, उनको नकारा है। इसलिए उनके हाईएस्ट लीडरशिप जो है देश की, मोदी जी हो, उनके राष्ट्रीय नेताओं को वहां पे बुलाया जाता है। जैसे महाराष्ट्र से देवेंद्र फडणवीस उधर जाके एकता और सांप्रदायिक सद्भावना की बात करते हैं और यहाँ पे महाराष्ट्र जल रहा है। मराठा रिजर्वेशन का उधर बोलते हैं हम ओबीसी को रिजर्वेशन देंगे, वहां के लोकल अलग अलग कम्युनिटी को रिजर्वेशन देने की देवेंद्र फडणवीस जी बात करते हैं, लेकिन मराठाओं को, ओबीसीओ को यहाँ पे जो जल रहा है उसके ऊपर कुछ बात नहीं करते हैं। तो ऐसा ही हाल इनका सभी राज्यों में है सर। पर मोदी साहब का कहना है, देखो अभी 10 साल में कांग्रेस सरकार नहीं है सेंटर में, उससे 60 साल तक आप लूटते रहे, कांग्रेस लूटते रहे। मगर ये 10 साल में मोदी साहब जब से है, आपका लूट काल समाप्त हो गया, आपका तिजोरी, कांग्रेस का तिजोरी खत्म हो गया, मोदी साहब का कहना है। तो जहां जहां राज्य में आप हो, वहां जनता को लूट रहे हो, आप जनता को लूट रहे हो। सुरेश चंद्र राजन जी, कांग्रेस जनता को लूट रहे हैं। जो 5 राज्यों में आपका सरकार है, वहां जनता को लूट रहे हैं, बिकॉज सेंटर में आपके तिजोरी खाली है कांग्रेस के। तो इसका कितना सत्य है? 60 साल से आप लूट रहे थे, अभी सत्य में नहीं हो सेंटर में, मोदी साहब ने हर चीज को डिसिप्लिन कर दिया, मगर आप राज्यों में जहां पर है जनता को लूट रहे हैं। राजन जी, प्रदीप जी, मुझे एक बात बताइए, अगर मोदी जी का कहना है कि कांग्रेस ने देश की जनता को 60 साल में लूटा है, अगर यही बात मोदी जी सारे दुनिया को बोल रहे हैं डिंडोरा पीटकर, तो मुझे एक बात बताइए, फिर मोदी जी को देश की जनता सभी राज्यों में चुनाव में क्यों जिता नहीं पा रही है? देश की, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बोलने वाले नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी का सारे राज्यों में आप सरकार क्यों नहीं ला पा रही है? स्टेट की जो लीडरशिप है, स्टेट अलग अलग राज्यों के लोगों के हितों के लिए ये उन्होंने अगर सचमुच काम किया है, तो सारे राज्यों में इनका सरकार क्यों नहीं है सर? ये आत्मचिंतन करना चाहिए मोदी जी।
मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी। इसलिए मुझे ऐसा लगता है प्रदीप जी, इन्होंने कांग्रेस को जितना बदनाम करना था वो कर लिया, लेकिन लोग कांग्रेस पार्टी की विचारधारा, कांग्रेस पार्टी का काम करने का तरीका और नरेंद्र मोदी जी का कार्यशैली को लेकर उन्होंने आत्मचिंतन किया है और लोगों को बहुत बड़ा पश्चाताप हो रहा है। लोग उन्होंने जो गलती 2 बार की उसको तीसरी बार दोहराना नहीं चाहते हैं, इसलिए हर राज्य में भारतीय जनता पार्टी को पराजित कर रहे हैं सर। लेकिन सुरेश चंद्र राजन जी, अब तो क्या है कि राजस्थान में तो मतलब क्या है, अशोक गहलोत साहब के सुपुत्र को भी नोटिस चला गया, राजस्थान पीसीसी के जो प्रेसिडेंट हैं उनको भी समन्स चला गया। तो ऐसा तो नहीं कि चुनाव के पहले जितने भी नेता हैं सबको जेल में डाल देंगे? पूछ रहा हूँ सर आपसे। सर ये तो जेल चला क्या? तो चुनाव जेल चला जाएगा? मोदी जी है ना, ये सारे उनका प्रचार सभा हो गई, लोगों को संबोधित किया हुआ, अलग अलग योजना लोगों को गिनाई, इसके बावजूद भी उनको माहौल नहीं दिखाई दे रहा है। तो जब सारे कोशिश करने के बाद भी जनता उनको सपोर्ट में नहीं आ रही है, तब जाके ये उनका जो फाइनल हथियार है, ईडी, सीआईडी, सीबीआई, अलग अलग केंद्रीय तपास यंत्रणा का अपोजिशन के ऊपर हमला करना, उसका दुरुपयोग करना, इसके ऊपर लगे हुए हैं। आपने कल राजस्थान में देखा होगा, जयपुर में ईडी के कुछ अधिकारी 15 लाख रुपए की लांच लेते हुए पकड़े गए। वो एक ईडी के रिलेटेड एक मामला था, उसको 17 लाख रुपए का डिमांड कर रहे थे, उसमें वो पकड़े गए। और इसके लिए कांग्रेस पार्टी ने तो एक कैंपेन शुरू होने के पहले ही कहा था कि मोदी सरकार ये केंद्रीय तपास यंत्रणा या सरकारी कर्मचारी हो, अधिकारी हो, उसका कैंपेनिंग के दौरान गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। तो कांग्रेस ने कल भी अशोक गहलोत जी का अपन स्टेटमेंट देखा होगा, उन्होंने कहा है कि ये सारे जो ऑफिसर रेड डालते हैं, इनकी जो गाड़ियां जाती है उनकी गाड़ियों की भी जांच होनी चाहिए, गाड़ियों की भी तपास होना चाहिए, और उनमें गाड़ियों में क्या लेके जा रहे हैं, या कहीं ऐसे लोगों को एक शंका है कि ये सारे अधिकारी भारतीय जनता पार्टी का स्टार प्रचारक बनके चुनाव ना कर रहे हो। जी, तो अगर मान लीजिए ऐसा हो जाता है तो कांग्रेस पार्टी क्या करेगी सर? सर देखो, कांग्रेस पार्टी इस देश के संविधान और जो लोकशाही ने हमें जो अधिकार दिया है, आंदोलन करना, रास्ते पे उतरना, लोगों के बीच में जाके आवाज उठाना, ये हम लोग लगातार कर रहे हैं। हमारे नेता राहुल गांधी जी ने इसी माध्यम से आज देश का पूरा माहौल बदलने का काम किया है और लोग भर भर के सपोर्ट दे रहे हैं। और उनको एक अच्छा इंसान और झूठा इंसान कौन है, इस दोनों के बीच का जो अंतर है या जो फर्क है वो सामने नजर आया सर। लेकिन मोदी साहब का ये कहना है कि मैं देश में दूसरी क्रांति लेकर के आ रहा हूं, जो बाकी काला धन बचा है, जो लोगों की बाकी काली करतूतें हैं, जो एक पैरेलल अलग से अर्थव्यवस्था चल रही है, उसको खत्म करना मेरा वचन है, ऐसा मोदी साहब कहते हैं। जो मोदी साहब का तो सर एक ही कमिटमेंट है, देश के लोगों का भला कर पाए या ना कर पाए, लेकिन अदानी और उनके जो भांडवलदार मित्र है और 2-4 उन लोगों का कल्याण होना चाहिए। इसके लिए सरकार की जितनी भी पॉलिसीज बनती है, कोल ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट का हो, बंदर का हो, एयरपोर्ट का हो, LIC का हो, जितने भी सेक्टर जो प्रॉफिट में थे सरकार के, उनको प्राइवेट सेक्टर में देना, इनको एकमात्र ऐसे आदमी को पूरे देश को बेचने का, खरीदने का लाइसेंस देना, इससे आपको एक बात स्पष्ट होती है कि मोदी जी ये सारी चीजें नहीं करेंगे। अपने मित्रों को बड़ा बनाने का और अदानी का जितना भला हो सकता है उसके ऊपर काम करेंगे सर। राजन जी, आप कोयले में आप मोदी जी को दोष दे रहे हैं, मगर मोदी जी आज ही भाषण में बोले कि कांग्रेस का करप्शन, कांग्रेस जो करप्शन कर रहा है सिर्फ स्टेट इफेक्ट नहीं हो रहा है, बोले हर परिवार, हर फैमिली का इफेक्ट हो रहा है कांग्रेस के करप्शन से। बोले आपके पास कोयला है बट आपको इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, आपको इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, इसका कारण कांग्रेस है। कांग्रेस आपका जो है कोयला में दलाली खा रहा है, कांग्रेस दलाली कर रहा है। तो आप अडानी पे आरोप लगा रहे हैं, मोदी साहब खुद कांग्रेस पे आरोप लगा रहे हैं। सुरेश राजन जी, आज ही उन्होंने पूरा स्टेटमेंट दिया कि कांग्रेस इज रिस्पॉन्सिबल। आप स्टेट को ही नहीं बर्बाद कर रहे हो, बट हर फैमिली स्टेट का उसको बर्बाद कर रहे हो करप्शन की वजह से, और खासकर कोयले में।
तो ये नया चीज क्या चीज है सुरेश चंद्र राजन जी? सर मोदी जी जो आरोप कर रहे हैं ना, उन आरोप के ऊपर मत जाइए सर। मोदी जी कांग्रेस कमीशन खा रहा है, कांग्रेस ने 60 साल में देश को लूटने का काम किया। मुझे एक बात बताइए सर, पिछले 9 साल में इनकी सरकार इस देश में है, केंद्र सरकार ने लोगों के लिए क्या किया है, इसके बारे में लोगों को बीच में जाते हैं तो बात करो ना। आप कांग्रेस को कितने साल दोष दोगे? अरे 60 साल में, चलो ठीक है, हम मानते हैं कि अगर आप ऐसा बोल रहे हो तो लोग ठीक है आज एक बार 2 बार सुनेंगे, लेकिन आपने 9 साल में क्या किया ये लोगों को बताओ ना। हर बात को लेकर आप कांग्रेस को दोष देते हो, कांग्रेस को भ्रष्ट पार्टी बताते हो, लेकिन सबसे ज्यादा भ्रष्ट लोग तो आपके पार्टी में हैं। जिन जिन लोगों के ऊपर आप भ्रष्टाचार का आरोप करते हो, इस सारे पार्टी को, सारे नेताओं को आप आपके साथ लेते हो, सरकार में सरकार स्थापन करते हो और उनके गले में हाथ डालकर आप सीना चौड़ा करके चलते हो। ये पूरा देश देख रहा है सर। राइट, थैंक यू सो मच सर। और चलते चलते एक बार फिर बता दें आपकी प्रेडिक्शन क्या है सर? बार बार आपसे यही सवाल पूछता हूँ। यही पूछते रहेंगे बजाज साहब आपको, जब तक चुनाव नहीं आते तब तक Yes. तो पूछेंगे क्या पांच। prediction है? पूरे पंजा, पूरे पंजा, पांच। कांग्रेस का पंजा। हाय, शाबाश, क्या बात है साहब, क्या बात। यही सुरेश चंद्र राजन जी, राहुल गांधी के सच्चे सिपाही। और जो मोहम्मद शामी की उन्होंने बात करी थी, एक और चीज बता दूं आपको, आगे जाकर के इस्तेमाल भी कर लेना अगर दिल करे तो। मोहम्मद सिराज और मोहम्मद शामी, मोहम्मद शामी ने 6 विकेटें ली, मोहम्मद सिराज ने 3। दोनों पसमंदा मुसलमान हैं, याद रख लीजिए। लोअर कास्ट मुसलमान है, अशराफ नहीं है, सैयद नहीं है, पठान नहीं है, कुरैशी नहीं है, दे आर इंडियन सर। पसमंदा मुसलमान है दोनों। चलिए ओबीसी Yes, है yes, yes, yes. सर, ओबीसी है, क्योंकि आजकल चल रहा है ना कास्ट बेस्ड सेंसस ये वगैरह वगैरह। बजाज साहब का कहना है कि कहीं मोदी साहब उनको साथ में तो नहीं ले ले। 100% मोदी साहब अडॉप्ट करेंगे उनको, अब देखना आप, और कहेंगे हमारी देन है। चलिए, थैंक यू सो मच सर, Yes, sir. थैंक यू वेरी मच, ऑल द Thank you, बेस्ट। thank you, sir, आप thank you, बेस्ट sir. ऑफ लक टू यू। लेकिन आपने आज याद रख लीजिए 2 नवंबर को आपने कहा है 5 की 5 स्टेट आपके पास जा रही हैं सर, बोला है आपने। चलिए सुरेश चंद्र राजन जी, वंदे मातरम। Yes sir. We are very confident sir. वंदे मातरम सर, वंदे मातरम। वंदे मातरम, वंदे मातरम। Thank you sir. Thank you Thank you Pradeep very ji. much. Thank you Arki. Thank you. Well, sorry about that loss. Thankfully, it wasn't too full. Yes, yes. Otherwise, the whole thing would have fallen. But anyway, quite a thing. My God, They need to get a tip. 55 all out, which is amazing, absolutely It's amazing. difficult to believe that we are so good No, that we could knock down people. Bowling attack is fantastic. Yes, yes. That there is no doubt. And if this pace attack really, they taste blood, the way Yes. they are taking wickets on Indian conditions. Where there's nothing for bowlers. Yes, They're nothing flat for wickets. They're flat Then tracks. we can imagine if Siraj, Shami, and all the Bumrah. other fast bowlers, Bumrah, really, move ahead from here. Then it's great for Indian cricket. I mean, there was a time Fantastic. when we had that 4 or 5 pace bowlers, Zahir Khan, we had Nehra. You had Irfan Pathan, Zaid Irfan Khan, Pathan. Ashish Nehra, you had Yes, RP yes. Singh, RP Singh. and we had Balaji. Don't forget So, Balaji. Yes. Right, but that's just about it. And let's go across to the Aam Aadmi Party. Mr. Arvind KEJRIWAL refused to appear in front of the Enforcement Directorate today. He sent them a reply saying that your notice, that is your summons, sorry, not a notice, it's not a notice, it's a summons. The summons itself is illegal, that's what he has said. And instead he decided to do a roadshow in Singrauli along with the Punjab Chief Minister, Mr. Bhagwant Mann. Very, very successful roadshow, by the way. People turned up in huge numbers. I think the speculation was that perhaps they're going to pick him up from there. Nothing of that sort happened. However, the Aam Aadmi Party leadership, Pradeep ji, says that in all likelihood Arvind will be arrested. That's what they say. Let's ask Meenal Jain. I think Meenal Jain is with us from the Aam Aadmi Party. Meenal ji, namaskar. नमस्कार। Namaskar. Vande Mataram, ma'am. Vande Mataram. वंदे मातरम। Sorry to keep you waiting. I hope you don't mind. लेकिन आज अरविंद जी नहीं गए, उनको समझ दिया गया था, उन्होंने जवाब दे दिया। उनका भाई मैं कन्वीनर हूँ पार्टी का और मेरी गाइडेंस के अंडर ये सब काम हो रहा है, तो आप एक तो अपना नोटिस विड्रॉ करें जो वैसे ही गैर कानूनी है, और उसके अलावा अभी भी 3 जो मंत्री हैं आम आदमी पार्टी के, तीनों के तीनों अभी भी जेल में हैं। और उसके अलावा आई थिंक देयर हैज बीन वन मोर
A couple of other raids have happened on that the I can't source. hear anything. Hello. Can you hear me, ma'am? Yeah, now I can hear. You can hear me? Good. Yeah. So what I want to know is, what is the next step? Arvind has not gone to the ED's office. What happens now? Meenalji. So Arvind definitely doesn't want to appear in front of ED because he thinks this is a absolute a political vendetta and BJP is all out to kill Aam Aadmi Party, Ji. which is a very new phenomenon in politics, Indian politics. And we all come from a non-political background, and we Ji. have reached up to here, and we became a national party, and BJP is all out to kill our party. So, which Arvindji, I think what he did today was absolute in protest that we don't agree with whatever your ED is doing or whatever ED is doing at the behest of BJP. It is not legal because they are just going after one after the other leader of Aam Aadmi Party and putting them behind bar. And the reason is very clear because BJP sees them as a threat. They don't see any other party as a threat, but they see Aam Aadmi Party as a threat because if they go full on campaigning in Lok Sabha or the state elections, which are just round the corner, so it will be definitely be a deterrent for BJP, which is anyway losing the elections. Pradeep ji. How do you see this? Do you think when Rahul Gandhi said that minorities are being targeted, opposition is being targeted, judiciary is being intimidated, there's an increase in right-wing activism, democracy is in danger, Loktantra khatre mein hai, that was what Rahul Gandhi was saying, and then it was all echoed by the India Alliance. Now this arbitrary attack on the opposition leaders. Now we had, your leaders being arrested, and the bigger cause was you were part of the India against corruption. You were fighting against corruption, and you suddenly find all your leaders going into the jail for corruption. And now they have surrounded Arvind KEJRIWAL ji, who was leading the entire Indian against corruption movement, totally movement. And now you have Raghav Chadda who comes up and shows that Apple has sent him a notification that state-sponsored attackers are behind snooping your phone or trying to hack your phone. How do you see this entire thing? लोकतंत्र का खतरे में है मीनल जी. लोकतंत्र तो खतरे में है ही है. जिस तरह से ये लोग कर रहे हैं भाजपा वाले, ये वो दिन दूर नहीं कि ये शायद चुनाव ही ना कराएं अगली बार. तो ये हो सकता है, ये वेरी मच पॉसिबल है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन ही बदल डालें. तो हम लोगों को एज पीपल ऑफ दिस कंट्री, एज आम आदमी पार्टी, we stand with our constitution, and so today Arvindi refused to go and appear in front of ED. But I don't think they will leave him outside because he's become a threat to their victory. So they will definitely go behind them. And the Apple saga, which you all saw, Apple themselves, Apple is such a reputed company, and they send letters to all the opposition leaders and journalists. I don't know whether any of you received that notification or not from Apple, saying that somebody is trying to hack into your accounts, which is such a shameful thing. And above that, after Apple said this, the MEA today, the Minister of External Affairs, threatens Apple that we'll stop your Indian operations if you keep behaving like this. So the thing is, the democracy is definitely under threat, and Arvind is one of the warriors for democracy. And by putting Arvind behind bars, it becomes easier for BJP. So I think Aam Aadmi Party must be having a plan in case the most unwanted thing or things that should not be happening happens. If at all the government, the agencies of the government goes and arrests Arvind Kejriwal ji. Now you need to have plan B in place, because you're fighting most of the elections in states also. In states also you are doing. It should not be that Arvind Kejriwal gone, the party collapses. Now how are the Karyakartas, how are the youth leaders, how are the state leaders, how are the district leaders? Have you all got together and planned for the inevitable in case it happens?
Yeah, we are very much in everything what is happening in Delhi. We are observing it very keenly and carefully. And the moment Arvindji is behind bars, it's not that if it's not about this fight is not only about Arvind. It's about that thought process that जो बोलते हैं ना कि अरविंद खाली पार्टी नहीं है. The whole party is now Arvind Kejriwal. There are thousands of Arvind Kejriwals which have become like him and which can act like him. So he has prepared a lot of people who can take care of the party when he is not present. God forbid it happens, but we are very much prepared to handle everything when he is not there. No, fantastic. I mean, where any kind of things, where environment is concerned, we saw that Arvind Kejriwal acted the best. You control stubble burning. You control farm fires by 50%. Punjab is the greatest example. Delhi is also one of the greatest example. In short time, you really worked on things. You got all the unwanted, pollutions, that pollutants that was going in the air. You stopped it. And you also, talking about environment, created one particular thing where all the debris of Delhi was collected in one company, and from there you were reusing it, the entire thing, where people especially in Mumbai also, you find all this debris are thrown on the roads or the ponds or the water bodies, and you fill it up. But here you had an innovative plan where a special company was formed where this entire debris was loaded and the entire product was made reusable. Kejriwal ji has been doing this. It's the only, I think, company in the whole of the country which is doing all these kind of activities. Environments, you're doing great. You're doing a great job controlling drug trafficking in Punjab, where it's a pioneer state, the first among the states really acting by law, also enforcement, also by the administrative process also. You have been doing everything right. But how are you going to move ahead? Because Congress is copying all your plans, copy paste करके पूरे 5 राज्यों में they are really building up like anything. Your Kalyan, Garib Kalyan Yojanas has been copy pasted by the Congress, and they are moving ahead like victory for Congress in 5 states. That's the entire message that is going around. So how do you see development? आप बहुत कर रहे हो, but somebody else is taking the credit. Meenal ji. So, see, we cannot stop anybody from copying and pasting. That is like all over the place in any case. But copy paste करने से you can't implement the things. You can declare the thing कि we will build 1,000 schools, but just to build the infrastructure and put that motivation in the teachers to teach the student, to change the whole social fabric of the students who are coming in the school. So that is only possible with that kind of vision which only Arvind ji has. And that, by the way, is footage from Singrauli, where Arvind Kejriwal was today. Along with Bhagwan Maan ji. I don't think historically this has ever happened in the country. Can we see that again, please? Can we see that again? Ji, Meenal ji, boliye. Aap boliye, please. So that was very much expected out of Arvind ji, what we have seen him during the IAC days. So when there were like people and there were protests and police would attack the protesters with lathi and all. So we used to ask him ki, what will happen like to the volunteers, maybe they will get arrested. So he told us one thing, that मैं सिर पे कफन बांध के निकला हूँ, जिसे साथ देना है वो आ जाए, जिसे नहीं देना वो घर पे बैठे. So we knew that this is Arvind, this is coming like. So I don't know how this BJP government will take it, because 3 times they have to summon and then they have to arrest or whatever that process is there. So the first summon, of course, Arvind ji has absolutely rejected that I'm not going to appear because he has called the summons illegal. Yeah, he called the summon illegal and politically motivated. So why should he appear? There is no logic in what these people are doing. He's working for the people. He's doing such a good job. So you just want to. It's like a very transparent thing for people now to see. Everybody knows what is happening in the country. So now the people have to stand up, and Aam Aadmi Party definitely will stand for Arvind and be Arvind in absence of Arvind. तो जैसे पहले आप लोगों ने टोपियां बनाई थी इंडिया अगेंस्ट करप्शन में, मैं भी अन्ना, तो अब टोपियां बनेंगी मैं भी अरविंद. अगर अरविंद जी को अगर जेल में डाल देते हैं तो
Is that the plan? कि मैं भी अरविंद हाँ, हर जगह मतलब जाएंगे? प्लान, वैसा कुछ प्लान नहीं है, बट आई थिंक दैट्स अ ऑब्वियस थिंग व्हिच इज इन आवर हार्ट्स, बिकॉज वी हैव सीन हिम वर्किंग फॉर द पीपल एंड लेकिन दिस आपको ओनली। खुद क्या लगता है कि आपको लगता है कि यही स्पष्टीकरण है वास्तविकता में, यही एक्सप्लेनेशन है कि बीजेपी डरी हुई है आम आदमी पार्टी से, या फिर जो शराब की पॉलिसी आई उसमें कुछ गड़बड़ थी? और क्या आपको लगता है कहीं इन योर हार्ट ऑफ हार्ट्स के कहीं असल में कभी शक नहीं होता है कि क्या यार कहीं असल में करप्शन तो नहीं करी हमारे लीडर्स ने? कभी लगता नहीं है नहीं, आपको ऐसा? हमारे यहाँ तो हर वॉलेंटियर क्वेश्चन पूछता है। ऐसा नहीं है कि हम लोग चुप होके बैठ जाते हैं कि भाई जी। अदानी अदानी ने इतना पैसा खा लिया, मोदी जी इतना पैसा खा रहे हैं, तो अंधभक्त लगे पड़े हैं उनको बचाने के लिए। तो हमारे यहाँ तो कुछ होता है तो ट्विटर पे हम सारे सवाल पूछने लग जाते हैं, ये क्या हुआ, वो क्या हुआ। और इंटर पार्टी बहुत सारे डिस्कशन के इंटेलेक्चुअल लोगों के बहुत बड़े बड़े ग्रुप्स हैं, जिनमें बहुत सारे आईआईटीएंस, डॉक्टर्स, मतलब बहुत ही काफी सारे सपोर्टर्स हैं जो खुद क्वेश्चन पूछते हैं। और हमारी पार्टी एकदम ट्रांसपेरेंट डोनेशन पे चलती है। तो अगर हमारे डोनर्स या हमारे सपोर्टर्स को हम नहीं बता पाए कि ये पॉलिसी में कुछ गड़बड़ थी कि नहीं थी, तो हमें तो सारा सपोर्ट बंद हो जाएगा फाइनेंशियल। हमारा कोई डोनेशन वैसे नहीं है कि जो सीक्रेट डोनेशन आते हैं बीजेपी को और दूसरी पार्टियों को। तो हमारा तो पूरा सिस्टम ही क्रैश हो जाएगा अगर हम उनको रीजनिंग ना दे पाए। और हर हर एक्शन पे हमारे को हर जगह जवाब देना पड़ता है। तो अगर ऐसा कुछ होता, और सुप्रीम कोर्ट का भी जो अभी जो आया है मनीष जी के बेल के समय, तो उसमें कहीं भी मतलब मनी ट्रेल नहीं पता इनको, ये नहीं पता पैसा कहाँ से आया, क्या हुआ। सिर्फ आप एक इंडिविजुअल के जो अप्रूवर बना दिया, जिसे डरा धमका के बीजेपी ने, उसके उस पे आप सारे लीडर्स लेकिन को। एक चीज तो उसके खिलाफ जाती है ना मैडम, मीनल जैन जी, एक हाँ। चीज तो खिलाफ जाती है ना कि पॉलिसी फिर अगर इतनी अच्छी थी तो चेंज क्यों करी आपने? फिर पुरानी पॉलिसी फिर रीइंट्रोड्यूस क्यों कर दी? इसी को लागू रखते, इसी को जारी रखते। भले ही लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब चीखते रहें, उछलते रहें, कूदते रहें, वैसे भी वो कूदते फांदते रहते हैं, उसमें नई बात क्या है। तो यही पॉलिसी अगर रखते तो ये पॉइंट तो खिलाफ जाता है ना कि पॉलिसी में जो नई शराब नीति थी उसमें कुछ ना कुछ तो गड़बड़ थी जिसकी वजह से उसको बदलना पड़ा। मीनल जी, नहीं, गड़बड़ कुछ भी नहीं थी। उन्होंने जो वेंडर्स का जो भी परसेंटेज था या जो था वो चेंज करके उन्होंने वापस उसको पुराने उस पे ला दिया। तो इन्होंने पहले सोचा था कि जैसे जो पंजाब के या जो दिल्ली के वेंडर्स हैं, जो पुराने वेंडर्स हैं, उनकी एक तरह से मोनोपोली हो जाती है कि वही वही को हमेशा ठेका मिलता है, वही जी वही लोग हमेशा जी, आते हमेशा रहते हैं। उन्हीं को मिलता है जी। हाँ, तो उसको बदलने के लिए एक नए तरह से इन्होंने कोशिश की। इन्होंने काफी प्लान वर्कआउट किया, फाइनेंशियल्स कैसे होंगे, क्या होगा। इनको लगा स्टेट को इससे रेवेन्यू ज्यादा मिलेगा। फिर ये सब होने लगा कि ये तो अपने इसको दे रहे हैं, उसको दे रहे हैं, ये कर रहे हैं। जो पुराने वेंडर्स थे वो भी काफी नाराज हो गए। तो फिर अरविंद जी ने सोचा कि पुरानी ही पॉलिसी ठीक है, इसी को हम वापस से ले आते हैं। I think that was a major point. जी प्रदीप जी, Meena ji, we are trying because we were always discussing. The people elect a government. They elect a government. The government decides the policies. The government decides the policies, and if you have this kind of an atmosphere कि state government ने एक policy decide किया, change किया, amend किया, it has the powers to do it. Then suddenly you have scrutiny of that, you have CBI inquiry of that, and you challenge the entire policy. Now, entire the federal structure of the constitution, everything is coming under a कटघरे. This will be a landmark case where everything is affected because सरकार को हम किस लिए elect करते हैं? वो हमारे ये policies बनाए. और आज वही पॉलिसीज को आप चैलेंज करने लगे या सेंट्रल गवर्नमेंट के एजेंसीज उसको इन्वेस्टिगेट करने लगे हर पॉलिसीज को, देन व्हाट आर वी लुकिंग टुवर्ड्स? वी आर लुकिंग टुवर्ड्स एनार्की, डोंट यू थिंक सो? आगे जाके इट्स गोइंग टू बी every government that is not a BJP government will be open to scrutiny. Any law they make, Parliament, Assembly is a place where you make laws for the state. Now, how are you going to? Don't you think after this there's going to be एक बहुत बड़ा लैंडमार्क केस होगा जिसमें एवरीथिंग इज गोइंग टू बी चैलेंज्ड? या एब्सोल्युटली, मतलब ये तो एक छोटा सा पॉलिसी था, कितना 300-400 करोड़ का ये लोग इल्जाम लगाए जा रहे हैं।
मतलब हजारों करोड़, लाखों करोड़ आपने लोन्स राइट ऑफ कर दिए, लाखों करोड़ों का आपने पूरा G20 जो था उसमें अदानी के लिए MOU साइन हुए हैं। तो वो सारी चीजें आप कैसे उनको इग्नोर कर देती है ये गवर्नमेंट और ये जनता, जहां पर उनको दिखाई नहीं देता कोई अपने, जिन्होंने मोदी जी को लेके आया है वो तो उनको सवाल करना चाहिए ना कि ये क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। और ऐसे छोटे छोटे फैसले तो गवर्नमेंट के उस पे छोड़ देना चाहिए, पर इनको चाहिए कि बिना बात के आम आदमी पार्टी के पीछे पड़ जाओ और इस पार्टी को खत्म करो, क्योंकि इन्हें पता है कि दिस इज द नेक्स्ट बिग थिंग and we have become a third largest party after Gujarat elections and we are a national party now, जो इनको बिल्कुल भी हजम नहीं हो रहा। और तो और छोड़िए, मतलब हाँ बेचारे राघव चड्ढा जी का बंगला भी ले रहे हैं और उनको बोलते हैं एंड दे हैव सस्पेंडेड हिम इंडेफिनिटली। ये क्या होता है? ये मेरी समझ के बाहर है। एग्जैक्टली नहीं, पहले भी संजय जी को जब भी उन्होंने अदानी जी। के खिलाफ बोला या राहुल गांधी जी को जब उन्होंने वो फोटो दिखा दिया, इतनी क्या बड़ी बात हो गई कि आपने उनका भी घर ले लिया था, उनको सस्पेंड कर दिया इंडेफिनिट टाइम के लिए। मतलब आपने एक भी बार मणिपुर के ऊपर नहीं बोला, आपने एक भी बार अदानी पे कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दिया। और सबको पता है, मतलब मेरे बहुत सारे स्टॉक मार्केट में दोस्त हैं जो इतना क्लियर दिख रहा है कि शेयर्स आर मैनिपुलेटेड, हिज फर्म्स आर मैनिपुलेटेड, हिज पी रेशियो इज सो हाई, बट स्टिल आप कोई एक्शन नहीं लेते, कुछ नहीं करते और दूसरों को करप्ट करके चिल्लाते रहते हैं। मतलब ये तो हद से ज्यादा हो रहा है और लोगों को दिख रहा है, मेरे ख्याल से लोगों को दिख रहा है और ये वोट्स में इनके काफी नुकसान इनको भरना पड़ेगा। अब देखते हैं मतलब किस तरह से जनता देख पाती है इन चीजों को और किस तरह से इनका पॉपुलैरिटी कम होती है, क्योंकि इनको इतना अच्छा मौका मिला था कि ये पूरे मेजॉरिटी गवर्नमेंट थी इनकी, मेजॉरिटेरियन, और इनके स्टेट्स में भी 17 स्टेट्स में इनकी सरकार थी एक समय, लेकिन इन्होंने कोई भी ऐसा माइलस्टोन अचीव नहीं किया कि आपने हेल्थ पे, एजुकेशन पे या किसी भी तरह का, सिर्फ एक रोड बना रहे जिसमें भी कैग ने बता दिया कि इतना करप्शन हो रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे अनाप शनाप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहे हैं। अभी मुंबई में कोस्टल रोड की बिल्कुल जरूरत नहीं थी, एनवायरनमेंट को इतना बड़ा थ्रेट हो गया है, पर बना रहे हैं क्योंकि इन्हें कॉन्ट्रैक्टर्स को पैसा देना है, कमीशन खाना है, इनके लोग बुरी तरह से खाने पीने में लगे हुए हैं। तो अगर इस तरह से आप राजनीति चलाएंगे जिसमें देश की गरीब जनता और उनका कोई ख्याल नहीं रखा जाएगा और सिर्फ नफरत फैलाएंगे, तो ऐसी राजनीति इनको मुबारक हो। हम तो आम आदमी पार्टी के लोग हैं, हम आएंगे तो लोगों के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, पानी, हर तरह से उनको अच्छी, जो एक लाइफस्टाइल जो एक बाहर के देश में जाता है तो गरीब आदमी भी अच्छी बसों में सफर कर पाता है, अच्छे स्कूलों में जा पाता है, अच्छे हेल्थ केयर होता है, वैसा हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पे हर आदमी को मिले। क्या बात है सर, क्या बात है प्रदीप जी। That's fantastic. So, That is the- you're not going to give up, the Aam Aadmi Party is not going to give up. Whatever the BJP tries, even if Kejriwal is arrested, you all will resurrect the Aam Aadmi Party. Vinal ji. इंशाल्लाह हमारी तो क्या बात यही ये है, है क्या बात है। कि कभी ये देश के लिए हमारा मन से काम करने की नियत खत्म ना हो, जी, कहने का क्योंकि मतलब ये हुआ, अरविंद एक विचारधारा है, उसको खत्म करना नामुमकिन है बीजेपी के लिए। कहने का मतलब ये हुआ कि भले जेल में डाल दीजिए, कुछ भी कर लीजिए, आम आदमी पार्टी कहीं जाने वाली नहीं है। ना यही ना रहेगी। ना, सवाल ही नहीं उठता। क्या बात है। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच मैम, ऑल द बेस्ट टू यू। द कंट्री नीड्स पीपल लाइक यू। थैंक यू। भारत देश को आप जैसे लोगों की बहुत बहुत सख्त आवश्यकता है। नमस्कार और वंदे मातरम। थैंक यू सो मच, गुड नाइट। Well, that's just about it for tonight's show. आज के शो में से इतना ही। Do we have any comments that we can I take? got about 4 comments they say. Do we have any comments? We do? All right. आप लोग ज़रा अगर चैनल को लाइक करते हैं तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी कर लें अगर अच्छा रहेगा, मतलब सबके लिए। और अगर वो बेल आइकन के ऊपर अगर आप प्रेस करेंगे तो जो हमारी नई वीडियोस हैं, पूरे दिन में जो नई नई वीडियोस आती हैं वो सारी की सारी आपको मिल जाएंगी। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल। और लेकिन हमने कमेंट ज़रूर भेजें, कमेंट्स आपके पढ़ने में बहुत मज़ा आता है। देखें प्रदीप जी, हाँ, और इस शो के बाद जरा कहीं जाइएगा नहीं, देयर इज अ वेरी वंडरफुल प्रोग्राम दैट प्रदीप जी हैज डन टुडे। प्रदीप जी उसके बारे में जरा बताएं जरा। Yes. There was a huge demolition where Santa Cruz East, Prabhat Colony, just bang opposite
रिलायंस बिल्डिंग, दैट इज सैंटा क्रूज ईस्ट, तो वहाँ पर लोग करीबन 60 साल के रह रहे हैं, करीबन 28 or 38 structures, 60 years old, and that has been demolished because the land has been allotted to Reliance Anil Ambani company, and Reliance Anil Ambani company owns that land, was given that land, and now you break these structures. Suddenly कौन सा year का cut off date है, nothing is properly explained to the people. That is what the people claim. And ये दुख भरी चीज़, किसी का घर टूटना after 60 years. I mean, you've seen 3 generations out there, and suddenly you allotted, then before having a proper survey being conducted, people being rehabilitated around the vicinity, और आप ऐसे तोड़ना with the use of force. Now this is something which we say, we met and talked to the people, and the people were explaining their grief कि अभी कहाँ जाएंगे, घर बेघर है, allotment हुआ है, वहाँ पर कहाँ पर there is no proper rehabilitation, food, water, electricity. I mean, this is something the government has to think about before And they have to wake up and give it to a company. That's So right. given 60 years old, I mean, people have been staying there for 60 years. Just as soon as we wind up the show, just after that, you will see this. And this has been the story practically all over Mumbai, and we need to do something about it. Right, let's take a look at the comments. Zara comment दिखाएं. This, I think, is with regard to Mr. Nizamuddin Rain. Good statement from Darbhanga Zila Jamiatul Rain District President. User VL9DN8PX5P. Jamiatul Rain. वो भी Rain है. चलिए. Priyanka Chopra stands in white floral sari at Jio Mami Mumbai Film Festival. The gorgeous Priyanka Chopra. खुद की कज़न की शादी में नहीं आई. बू बू. दीपा बिरजे. चलिए. प्रियंका जी परिणीति की शादी में नहीं आई. इनको याद है. Sunny Deol and Abbas Mastan to work together again in an action thriller. Can't wait to watch it. कासिम अली साहब लिखते हैं. कासिम अली 8084. और कोई है साहब? Is that the final one? महाराष्ट्र सरकार दो मुंह वाला सांप है. MN Islam 1985. Right. Thank you very much. That is politically colorful as usual. Please do send in your comments, as many as possible, and do subscribe to the channel if you haven't done so already. We'll of course be back with you tomorrow. Just after the show, you will watch that absolutely heartrending story on what has happened in Santa Cruz East. People living in the same houses for the last 60 years have suddenly been dishoused, their houses demolished. It's terrible. It should not happen to anyone at all. That's it. That's all we've got for you in tonight's show. लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं. शो के फौरन बाद आप देखिएगा प्रदीप जी ने स्टोरी करी है, and it is heartrending. That's it. That's all we've got for you आज के शो में. नमस्कार. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम. Vande Mataram. I am Pradeep Nambiar from Nation Now. We are in Mumbai. This is close to Santa Cruz East, Prabhat Colony, where we see a big demolition going out here. Big demolition. And as you say, there always a conflict between abiding law and arbitrary power. The test for every democracy. It stands or it falls according to its own choice. Whether to give supremacy to the law or to the will of the people. Whether to constitute a moral association maintained by duty or a physical one kept together by force. ये पूरे जो बस्ती है इसको क्या बोलते थे, क्या नाम से? पंडित आश्रम सीताराम चौल. पंडित आश्रम सीताराम चौल. पंडित आश्रम सीताराम चौल में यहाँ पर डेमोलिशन चल रहा है. हाँ सर. आपका नाम क्या है सर? सभाजीत यादव. यादव जी, क्या प्रॉब्लम है यहाँ पर? ये डेमोलिशन क्यों हो रहा है? डेमोलिशन इसके लिए हो रहा है सर, पहले ये लैंड दिया गया था रिलायंस को. Okay. दैट वाज
1954 में फ्रेम हुआ था टाउन प्लानिंग, 59 में, हाँ रिलायंस को दिया था। नहीं 54 में फ्रेम हुआ टाउन प्लानिंग, 59 में लागू हुआ। तो उस समय पे इनको लैंड दे दिया गया था BSES को। और यहाँ पे जो 102 और 103 जो है 102, 103 यस, ये दोनों उनको अलॉट कर दिया गया था। लेकिन टाउन प्लानिंग ऑफिसर का या BMC का काम है यहाँ पे आके लोगों जो यहाँ पे रहते थे उनको कहीं और शिफ्ट करके जहाँ पे ये चाली वालों को दिया गया था, बल्कि ये लोग ने नहीं किया। ये पूरी गलती BMC की है और सरासर गलती है। नहीं, ये आपने कहा कि कौन से साल में था ये पूरा प्रॉब्लम समस्या शुरू हो गया था? ये समस्या स्टार्ट हुआ सर 69 से। 69 से समस्या चालू है और आज 2024 में जाके तोड़ दिया। तो ये ब्लेम, ये BMC डिमोलिशन किस लिए? कोर्ट ऑर्डर है क्या? कोर्ट ऑर्डर है, इसमें दो राय नहीं। कोर्ट ऑर्डर ने क्या एक मिनट, कोर्ट ने बोला है सर इनको बाकायदे जितने भी दुकान वाले हैं 7 दुकान और 21 घर वाले लोग को बाकायदे एज पर पॉलिसी, 7 दुकान और 21 घर वाले सबको बाकायदा इनको रिहेबिलिट किया जाए। BMC ने हमारे साथ चीट किया है सर। ये एक वार्ड ऑफिसर यहाँ की महिला हैं, उनको सोचना से हम उनका रिस्पेक्ट करते हैं वार्ड ऑफिसर की। यहाँ पे जो और दूसरा एक धर्मराज शिंदे, ये अपनी गुंडाई दिखा रहे थे यहाँ पे। धर्मराज शिंदे टाउन प्लानिंग ऑफिसर। हमको 748 का एरिया, एक मिनट को, हमको 748 का एरिया देके 225 पे दिया और हमको रिहेबिलिट किया इसी जगह पे जहाँ पे होटल नहीं चलेगी दूसरे माले पे। तो कौन सी जगह पे? वो एकदम कोले करने जहाँ पे चरसी गर्दुल्ले पूरे रहते हैं वहाँ पे सर। किधर कोले करने? ये आराम सोसाइटी के बाजू में वहाँ पे दिया, सोसाइटी के पीछे जहाँ पे आदमी खत्म होते हैं। यहाँ की अच्छी जगह लेके वहाँ पे हमें भेजा गया है। और वो स्क्वायर फीट भी 225 के हिसाब से 748 वार्ड ऑफिसर का हियरिंग, शिंदे साहब का जवाब, उसके बाद भी लोग ने 225 दिया। ये इतनी गद्दारी की है BMC वाले ने। आप लोग भी इसमें इन्वॉल्व है। विश्वकर्मा क्या हो गया? आप कब से हैं इधर? हाँ, वही जो उन्होंने बोले 96 जब से है, लोग जबरदस्ती कर रहे हैं। जबरदस्ती आके बोलते हैं साइन करो, जबरदस्ती बोलते हैं साइन करो। तुमको दिया है उधर जगह दिया है तुमको। अरे किधर दिया? ये मेरे पिताजी है, हम 7 साल 57 ईयर्स हो गया मेरा। यस। और उसके बाद ये पिताजी को शुक्रवार के दिन आया, बोलता है इसके ऊपर साइन करो, साइन करो। मैं सोया था उधर पे, मेरी तबीयत खराब है, आज भी तबीयत खराब है। उसके बाद उन्होंने जबरदस्ती बोलते साइन करो। 2-4 लोग आए और फोटो निकाल रहे हैं इनका, साइन करते हुए फोटो निकालो, ऐसा इन्होंने बोल करके किया। और बोलते हैं हमने बोला हम साइन नहीं करेंगे जब तक हमको जगह नहीं दिखाएंगे, जब तक हमको जगह नहीं दिखाएंगे। जगह नहीं दिखाया आज तक, सिर्फ पेपर के ऊपर अनाउंस किया है, सिर्फ पेपर के ऊपर। सीने साहब ने बुलाया। आपको जगह अभी तक नहीं, देखो रास्ते में सामान है सब, देखो जरा रास्ते पे सामान है। 65 साल का मैं हो गया, देखो हम लोग फैमिली लेकर के कहाँ जाएंगे? सीधे ने फंसा दिया, सीधे साहब ने फंसाया। मेरे को बोला सीधे ने बोला सब लेडीज को लेके आओ, मैं सब लेडीज को लेके गया है। गलत हम लोग मेरे को कहाँ जाएंगे? बच्चों को लेकर कितना बार हम लोग ने जेरोक्स किया। देखो अभी किधर जाएंगे? चाहिए कीड़े मकोड़े बनेंगे। अभी देखिए साहब, वाइफ है ना हॉस्पिटल में, अभी मेरा वाइफ अभी हॉस्पिटल में गया, उसको बीपी बढ़ गया। मेरा वाइफ क्यों? अभी बीपी बढ़ गया उसको, अभी क्या करेगा? मैं देखो 21 घर सब अपात्र है, 21 ऐसा अपात्र दिखाया है, सब पात्र है, सब पात्र है, अपात्र दिखाया है, सब 5 घर को तुम पास कर रहे हैं। हमारा घर किधर गया? सर धर्मराज शिंदे मेन कल्प्रेट। मुझे एक बता दो कि आपको बोल रहे कि कोले कल्याण जाओ, उधर घर तैयार है आपका? कुछ तैयार नहीं है सर, वहाँ पे दूसरे माले पे दुकान चलेगी सर। कमर्शियल वाले लोग को कुछ दिया ही नहीं सर, कुछ भी ये लोग चीट किया है हमारे साथ। हाँ, तो आपका घर है इधर? आपका घर है, मेरी मम्मी है। मम्मी? अच्छा, आपकी 70 ईयर्स ओल्ड। 50 साल से मेरी दुकान है सर, बचपन से यहाँ रहे। प्राइम लोकेशन में हम लोग की दुकान है, हमको वैल्यू भी नहीं मिला है, ना दुकान मिला है। 50 साल हो गया। आप ये 50 साल को तुम नापात्र कर सकते हो क्या? धर्मराज शिंदे जी कहाँ पर बैठते हैं? ये धर्मराज शिंदे टाउन प्लानिंग ऑफिसर BMC में बेसमेंट में है।
बीएमसी के बेसमेंट में है, उनको इंचार्ज बना गया यहाँ का तोड़ने के लिए। उन्होंने मेरे साथ चीट किया, पूरी चाली के साथ चीट किया है। एज पर ये लैंड किसको हैंड ओवर किया अभी? ये रिलायंस को हैंड ओवर करेंगे, यानी अडानी को हैंड ओवर किया? हाँ, नहीं सर, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर। रिलायंस तो खरीद लिया ना अडानी? नहीं सर, खाली कस्टमर उन्होंने खरीदा है, अभी भी प्रॉपर्टी उनको बेचा गया है। जो कि ये प्लॉट पे सर एक चीज बोलूंगा, ये प्लॉट पे 102 और 103 पे 210 करोड़ रुपए का कर्जा है आईडीबीआई का। रिलायंस ने लिया है। रिलायंस ने ऑलरेडी पैसा भी ले लिया है और इनको दिया होगा पैसा तोड़ने के लिए सर। यहाँ पे पैसा भी दिया। अब ये समझ में देखो, अभी दो चीज है, मैं क्या आप इसमें जानकारी हो, ये पूरे आप आइए, पूरे जो है अडानी ने रिलायंस को टेक ओवर किया। ओनली कस्टमर आपका कहना ओनली कस्टमर, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं लिया है। बिल्डिंग जो है, बिल्डिंग यही रिलायंस का है कि रिलायंस का? यस बैंक ने ले लिया। अच्छा, जो भी लिया होगा, लीज पे लिया होगा, जो भी लिया होगा, यस बैंक ने टेक ओवर किया। इधर भी रिलायंस ने कर्जा लिया, रिलायंस का आज भी कर्जा है 102 और 103 प्लॉट पे। 102, 103 प्लॉट। तो आपने कहे शिंदे जी ने क्या किया, ये खाली आपको करके खाली करके शिंदे जी ने गलत पावर का इस्तेमाल। सर एक मिनट मैं बोलूं, आप आ रहा है सर, आ रहा है? शिंदे ने अपना गलत पावर का इस्तेमाल करके हमें खाली किया है। हम उनको कोर्ट में चार्ज करेंगे सर, कोर्ट ले जाएंगे। एक वार्ड ऑफिसर अच्छा महिला होके हमारे साथ गलत व्यवहार किया उन्होंने। हम हर कमर्शियल वालों के साथ चीट किया है और वार्ड इनके 60 होने के बाद भी 60 साल होने के बाद भी आज बीएमसी ने ये स्ट्रक्चर तोड़ा है। 60 साल से तब रिलायंस नहीं थी, शिफ्टिंग के पहले तोड़ा, शिफ्टिंग के पहले 60 साल पहले बीएससीएस था, बीएससीएस। अनिल अंबानी ने रिलायंस खरीदने के बाद ये स्ट्रक्चर का पैसा दे के बीएमसी को, जज को खरीदने के बाद में ये स्ट्रक्चर डेमोलिश किया। हमको कहीं शिफ्टिंग मिली नहीं आज तक। ये गरीब लोगों को, सभी रहने वाले को, जो भी है चलते सामान, जरा धीरे चलते सामान की तरफ। सामान देखिए, चलो जाते हैं आपके सामान के पास। चाचा क्या कितने साल से हो आप कितने साल से हो चाचा? कितना 55 से हैं इधर। 55 से आप 55 से 94 एज है। 55 से है। अभी आप बेघर हो गए, कोई रोजगार नहीं। हमको शिफ्टिंग दे के तोड़ना चाहिए था, शिफ्टिंग क्यों नहीं दिया? इतना अर्जेंसी क्यों नहीं? इतनी अर्जेंसी क्या? सामान के पास चलते, सामान के पास चलते। क्या है आपके सामान? इतनी अर्जेंसी क्या थी को पैसा दे के दे? नहीं, इतना अर्जेंसी क्या? इतनी अर्जेंसी क्या थी? इतने साल से क्या था? ये सब आपके सामान, ये सब आपके सामान है। ये अन्याय हो रहा है, ये सामान है, ये आप ही का सामान ये अन्याय हो रहा है। शिफ्टिंग देने के बाद तोड़िए, मुझे शिफ्टिंग के बाद तोड़ना चाहिए था। तो और आगे भी है क्या सामान? अरे बहुत सामान है, आगे तक है, रखा हुआ है सेफ्टी के लिए, यहाँ अंदर पे रखा हुआ है, इसके अंदर, हाँ, बिल्डिंग के अंदर। विनती करके सामान रखा हुआ। मैं यादव, अभी आपका बी यादव का लड़का बोल रहा हूँ। बोलो। बी यादव का, जो कि आज उनका सन 76 से यहाँ पे है। हाँ, उनको आज बताइए, बी यादव आज भी हैं, बुलाने पे आ सकते हैं। हाँ, कहाँ पर है यादव जी? यादव जी अभी हैं, गांव में हैं, लेकिन रही बात है, उनको भी चाहिए तो मैं बुला सकता हूँ। मैं उनका लड़का बोल रहा हूँ। पैसा अच्छा लिया रिलायंस से। तो आगे कुछ है आपका दिखाने के लिए उस तरह? बहुत सामान है। जरा चलते हैं वहाँ पर, चले आइए ना। आप कहाँ पर हो? आइए। क्या यादव जी? आगे सामान जो पड़ा है। अच्छा, आपके ये आपका कहना है कि शिंदे जी ने जाति किया है? हाँ, धर्मराज शिंदे। तो आपको लगता है तो धर्मराज शिंदे जी ने आपसे जाति किया है? देखिए सर, और ये सब सामान पड़ा हुआ है, ये सब सामान पड़ा हुआ है, ये हमको रोड पे डाल दिया। पर दिया ये सब कहाँ जाएंगे? ये पूरा सामान कहाँ तो यहाँ पर लोकल हर देखे तोड़िए ना। लोकल एमएलए, एमपी, लोकल कॉर्पोरेटर कोई मदद की है कि नहीं? किसी ने मदद नहीं किया सर, खाली वो इलेक्शन के टाइम पे आते हैं सर। किसी ने मदद नहीं की हमारी इस समय पे। सब लोग ने, सबको मैनेज किया गया है बीएमसी से। ये धर्मराज शिंदे ने सबको मैनेज किया है, सबको मैनेज किया। तो यानी आपका, हाँ बोलो, ऐसा चलता है क्या? देखो नहीं चलता। अब ये पैसा लाए बोल के क्या तुम अभी कल
2 दिन का जगह नहीं है ये, इस तरफ देखिए, 70 साल का स्ट्रक्चर वो दिन का ये देखो, डिमोलिश किया है। ऐसा नहीं करने मांगता ना गरीब को। किसी का घर तोड़ना गलत ये बात देखो है, सब किसी का किधर घर लेके जाओ अभी बोलो। Follow the due process of law. यादव जी, without the due process of law. as per policy. उस तरफ देख के बोलिए अंदर। साहब, मैं क्या बोल रहा हूँ साहब, मेरा मोदक जज ने 1965 हमको इसके बाद आपके पास मैं बोलता हूँ, मोदक साहब ने कहा था इनको पॉलिसी के आधार पे रिहैबिलिट किया जाए। मोदक साहब, मोदक जज साहब ने, जहाँ पे हाई कोर्ट जज के थे श्री राम मोदक जो भी बोले, तो इन लोग ने उनका बात माना नहीं। उनको 29/11 तक डेट था, ये 29/11 के पहले अपनी वाहवाही लूटने के लिए इन्होंने तोड़ दिया ये सब। 29/11 नेक्स्ट मंथ, ये मंथ का नेक्स्ट डेट है कोर्ट में, और उनको दिसंबर तक हैंड ओवर करना वैकेंट पोजीशन। इतनी घाई क्या है, इतनी घाई सर क्या है उनको? तब तो हमको रिहैब कर सकते थे, तब तक ये किया नहीं इन्होंने। बोलो बोलो। मैं एंड्रू स्कूल में पढ़ता हूँ, मेरा उम्र 62 है। हाँ, मैं 1978 में मैं एसएससी पास हुआ। मैं इधर वड़ा पाव खाने आता था, तो जब से 5 साल का था तब से मैं रामजीत होटल में वड़ा पाव खाने आता। और हाँ, और ये आज हम लोग देखते हैं अनऑथराइज हो गया, इतना पुराना, इतना अनऑथराइज हो गया। आपको अनऑथराइज किया। रिलायंस अगर इसको रीडेवलपमेंट करना चाहते हैं तो आपको इन सीटू भी यहाँ पर ही देखो, कोई भी प्रॉपर्टी, एक मिनट, कोई भी प्रॉपर्टी एक्वायर करो फॉर पब्लिक पर्पस, ओके, विद इन 1 किलोमीटर आप इनको सेटल करके दो ना। अभी इनको तुम किधर फेंक देगा, वासी मरोल इधर, उनका धंधा। मैं दुकान ग्राउंड फ्लोर में चला रहा हूँ, मुझे फर्स्ट फ्लोर या सेकंड फ्लोर में भेजा, मेरा दुकान कैसे चलेगा? लिफ्ट देगी ना गवर्नमेंट ऊपर चढ़ने के लिए। तो वो बात करने मांगता ना हम लोग से आने का के। अभी इधर कितना रूम था, सब लोग को मिल गया, फिर हम लोग को शायद देने मांगता। ऐसा नहीं करने का, देखो जरा, अब ऐसा सामान पड़ा है। परीक्षा चालू है, सब बच्चे का मेरा कहना है कि ये आपने कभी रिलायंस के लोगों से बात किया इस विषय में? सर वो आते कहाँ थे, हमें नहीं आते थे कभी, बात हुआ ही नहीं है सर। खाली कोर्ट में मिलते थे, वो जो भी कोर्ट जजमेंट, कोर्ट का जजमेंट हमें मंजूर है सर, लेकिन रिहैब करके हम रखो एज पर पॉलिसी मेंशन किया लाइन में। देखो, सरकार का पॉलिसी एकदम स्ट्रिक्ट है। नरेंद्र मोदी जो भी है प्राइम मिनिस्टर, वो बोले कि हर घर के ऊपर छत होना चाहिए, वो गारंटी है, बोला फंडामेंटल राइट है आपका, फंडामेंटल राइट है। और वो जगह जगह पॉलिसीज है स्टेट सरकार की आपको छत मिलना चाहिए, छत निकालना उससे पहले चल। और देखो, जो भी एमयूटीपी, जो भी ऐसे प्रोजेक्ट्स है, जो भी प्रोजेक्ट्स है, उसमें कट ऑफ डेट नहीं होता है। अभी मैं सुन रहा हूँ पात्र ये पात्र, इधर ही बगल में आपका 2018 में सब पात्र थे सब, जितनी 40 पूरी पात्र थी 2018 में। अब 2023 में इन लोग ने कैसे अपात्र कर दिया, मुझे समझ में नहीं आता। आप तो स्टडी किए, तो आपको क्या लग रहा है कि कैसे अपात्र हो गए? मेरे हिसाब से, सुनो, मेरे हिसाब से, बिकॉज अभी सरकार का पॉलिसी है, जो आपके बगल में एयरपोर्ट लैंड में जो भी होता है ये आपका है, तो उसमें क्लियर कट सरकार हर घर को एज ऑन जब बेसिस पे, उसमें कोई कट ऑफ डेट नहीं होता है, कोई कट ऑफ डेट नहीं होता है। जिसका घर है आप सर्वे करो और उसको घर दो। उस एक यहाँ पे कोई छोटी बहुत जो कमी है उसको भी एडमिट करने इन्होंने नहीं दिया हमें। जो बेचारे जितने भी घर वाले हैं, छोटी छोटी बातों पे, छोटा पेपर पे, जिसके पिताजी मर गए, सब बहुत उसके लिए लोगों को हैरान किया। करना चाहिए, दुकान वालों को तो इतना है, उन लोग ने चीट किया। ये जो पात्र का पॉलिसी किसने किया? ये धर्मराज सिंधे, बीएमसी धर्मराज सिंधे टोटल वही किए। टाउन प्लानिंग इसको दूसरे एजेंसीज को, सरकारी एजेंसीज को नहीं इनकॉर्पोरेट किए इसमें? नहीं, ऐसा कुछ नहीं सर। हमने अच्छे से उनके साथ सलूक वो भी किया। कोर्ट ने कहा था कि आप कोऑपरेट करिए उनके साथ, हमने कोऑपरेट वार्ड ऑफिसर के साथ भी किया, लेकिन उन्होंने भी हमारे साथ अच्छा नहीं किया। यहाँ का लोकल कॉर्पोरेटर कौन है, आप मेरी जानकारी के लिए? कॉर्पोरेटर कौन है इधर? यहाँ का कॉर्पोरेटर कौन है भाई? अच्छा, एमएलए जीशान सिद्दीकी है। अच्छा, पराग, ये क्षेत्र पराग, अच्छा एमपी तो वो है ना सर, तो पराग अलवनी का एरिया है। माडेश्वर जी पहले थे, अभी तो शायद नहीं, अभी तो नहीं है, अभी तो नहीं है, तभी तो ये रोक, यानी आज आपको मालूम ही नहीं था तोड़ने वाले? नहीं, मालूम था हमें तोड़ने के लिए। हमने तो खुद है जो एज पर हम गए थे यहाँ पे कोर्ट का ऑर्डर लेने के लिए, स्टे लेने के लिए, हमको नहीं मिला। नहीं मिला, एक दिन पहले नहीं दिया, नोटिस दिया गया, 48 आवर्स में गिरा दिया। अभी तो पूरा तोड़ दिया है। अभी क्या है, या तो आपको उनको ऐसा है कि आपको जाना पड़ेगा उधर,
आपको अभी जो उस क्षेत्र में है जाना ही पड़ेगा, दूसरा कोई चारा ही नहीं रखा है। अरे सर हम कहाँ जाएं, इस समय पे वो भी अपात्र हो गया है, जो पात्र थे वो भी अपात्र हो गए सर। उनको 48 घंटे में जगह लो, नहीं तो गया आपका। इनका कहना है 48 आवर्स में आप लो जाके और जगह देखिए। तो अपात्र वाले क्या करेंगे? अपात्र वाले तो कुछ भी नहीं है उनके पास अभी। पात्र वाले के बाद भी कुछ नहीं बचा सर अभी तो। सर नया स्ट्रक्चर तो रहता तो हम मानते हैं कि ये अपात्र है। हाँ सर, नया स्ट्रक्चर रहता तो हम मानते हैं कि ये अपात्र है। अभी आज गवर्नमेंट का सर्कुलर 95 70 साल से कौन आदमी यहाँ पात्र रहेगा? 70 साल से कौन? 76 का फोटो पास है सर इनका। फिर भी ये सब अन्याय का काम है। वो शिंदे साहब बोलता था तुम लोग को मिलेगा मिलेगा, हम लोग ऑफिस में जाता था हमेशा मिलेगा मिलेगा बोला, बस ऐसा कर दिया। हर आदमी से चीट किया घर में मिलने ने। यही बोला एवरी डे एवरी टाइम, लेकिन क्या फायदा भी नहीं था, मिलता भी नहीं। सबको हरास किया सर उसने, धर्मराज शिंदे ने। ये यानी कोर्ट से भी राहत नहीं मिला, आपको समझ में नहीं आ रहा, बिकॉज गवर्नमेंट पॉलिसी है। अभी एसआरए में भी 2011 का कट ऑफ, एसआरए में भी कट ऑफ सर। यहाँ पे 2000 का माना गया, यहाँ पे 2000 के पहले का देने को तैयार हूँ, तो भी ये नहीं मान रहे हैं। वो बोल रहे हैं हमको हटाना है, तुम लोग को हटाना है, तुम लोग। अरे हमको देके हटाइए ना आप, हमको देके हटाइए। दे तो आप रहे नहीं रहो, खाली हटाना है। वी विल बी मीटिंग द गवर्नमेंट, विल बी मीटिंग द गवर्नमेंट। हम शायद सीएम एकनाथ शिंदे, देव फडणवीस जी और अजित पवार जी से भी ये मैटर ले लेते अपने लेवल पे। हम लोग लेवल आप जरा कॉन्टैक्ट नंबर, बट वी विल ट्राई एंड सी दैट जस्टिस इज प्रोवाइडेड। बट जिस प्रकार से देख रहे हैं अभी भी तोड़ रहे हैं, पूरे तोड़ रहे हैं और तोड़ के पूरे खत्म कर दिए। एंड दीज आर द पीपल हु बीन स्टेइंग फॉर 60-70 years. Now this is what we call the travesty of justice. We from Nation Now are going to fight out this. We are going to oppose the government. We'll try whatever we can do to help these people out there. That's all from Pradeep Nambiar, Nation Now, Prabhat Colony, Santa Cruz East, Mumbai.